Good evening, everyone, and a very, very warm welcome to AMA today evening on a day which has been very rainy. And it's actually a miracle that we have been able to conduct this program when Ahmedabad is under an orange and a yellow alert. So, and we are very fortunate to have ma'am with us today. Ms. Vijay Lakshmi has been practicing farming full time since 2006. She graduated with a permaculture design certification course in 2013 and a teacher's training course in 2017 from the Permaculture Research Institute of North America. Since 2013, she has conducted over 300 workshops on urban permaculture in various parts of southern India and has undertaken over 7 projects. Her previous projects have encompassed corporate trainings on permaculture, soil building, and the preparation of bioenzymes, along with the implementation of waste management strategies at both corporate and home level. She has provided education on the importance of farming and environmental recovery to government school children and has trained rural farmers on methods to increase yield using less water and no chemicals. Furthermore, she has conducted training for the Pollution Control Board in Bangalore on crucial topics such as forest fire prevention, deforestation prevention, and waste management at the zonal level. Her corporate partners for these initiatives include Oracle, IBM, Ingersoll Land, and VMware. We are very lucky to have ma'am with us today, and it's going to be a very interesting conversation and knowledge sharing from whatever we had before the session. It's really going to be a session worth looking forward to. We welcome you, ma'am, at AMA today. Thank you so much. Over to you. કેમ છો બધા? અહીંયા સૌથી સારું શું જ ખબર બધા ઓળખે છે એટલે કોઈ આમ સ્ટ્રેસ છે જ નહીં, જરા પણ સ્ટ્રેસ નથી. હા, સો તમને એક નાનકડું એક કહું, તમને વિજયલક્ષ્મી મેમને હું જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યો તો તિરુવન્નામલાઈ કરીને જગ્યા છે તામિલનાડુમાં, ત્યારે એમને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યો અને મને સવારે જંગલમાં લઈ ગયા જ્યાં વીરપ્પને ચંદનનું લાકડું આમ તેમ કર્યું હતું ને, તો ત્યાં ગયા હું એમની સાથે ચાલતો ચાલતો જતો હતો અને એક એક ફૂટ પર ઊભા રહે, અરે મને કે તું આ ખાઈ લે. મેં કીધું ઓકે, તો મેં પહેલાં તો ખાઈ લીધું, પછી આગળ ગયો કે તું આ ફૂલ ખા, તું આ રૂટ્સ ખાઈ જા, તું આ ખાઈ જા. એટલે મેં ખાલી એમને એક જ સવાલ પૂછ્યો કે હું મરી વરી તો નહીં જઉં ને? થઈ શકે ના ના, તું ચિંતા ના કર, તારું બધું સારું જ થવાનું છે. સો યા, તો વિજયલક્ષ્મી મેમ વેલકમ ટુ અહેમદાબાદ. અને મેં એમને 2 મહિનામાં કન્વિન્સ કરી લીધા અમદાવાદ આવવા માટે, પહેલી વાર અમદાવાદ આવ્યા છે. સો યા, સો मैम आप पहले ये बताइए कि आपने जो मुझे स्टोरी बोला था कि आपने जब शुरू किया, जब श्री श्री रविशंकर आपके जो गुरुजी हैं उनके साथ, तो आपको बहुत सारे जगह उन्होंने दिखाई, फिर एक फालतू सा पहाड़ आपको दिया, तो वो स्टोरी क्या थी और आपने ये शुरू कैसे किया? तो फिर पर्माकल्चर पे थोड़ी देर में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे. या थैंक यू सो मच मीत. मीत को मैंने इतना कुछ खिलाया था जंगल में, तो उसने तो बदला ले ही लिया. कल मैं जब लैंड हुई तब से मुझे इतना खिलाया है गुज्जू खाना अभी तक मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना खिला के बदला ले लिया. या वेरी नाइस. तो 2013 में हम लोग को वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट मेरे जो मेंटर थे वेंकटेश धर्मराज, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नॉलेजेबल, वो अब नहीं रहे. उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था, गुरुदेव ने कहा था कि ये वाला जो यहाँ पे भी कुछ करो पर्माकल्चर का. तब तो काफ़ी सारे लैंड दिखाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लैट लैंड्स दिखाए, तो किसी पे भी संतुष्टि नहीं बनी थी कि नहीं इसमें नहीं उसमें नहीं. लास्ट में एक बंजर ज़मीन था जो गौशाला के पीछे, एकदम बंजर और पहाड़ 7 एकर्स का, जिसमें भी गाय भी नहीं जाती थी चरने के लिए. ऐसे ज़मीन को बोले दिखाए तो वहीं बैठ गए, बोले दिस इज़ द वन आई वांटेड. सो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगी कि द मोस्ट डिग्रेडेड लैंड को भी हम कन्वर्ट करने का जो
बाउंटीफुल ब्यूटीफुल बनाने का जो अपॉर्चुनिटी है, तो ये डिज़ाइन सिस्टम आपको देता है. दैट इज़ पर्माकल्चर, विच इज़ परमानेंट एग्रीकल्चर एंड परमानेंट कल्चर. ओके. तो फिर आपने पहाड़ों पे जैसे जब बोलते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन होना या सॉइल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, तो पहाड़ पे तो सिर्फ पत्थर ही रहते होंगे, तो वहाँ पे आपने सॉइल कैसे बनाया? अभी ना एग्जाम्पल, आप रोड में जब भी जाते हो, कहीं पे भी थोड़ा धूल मिट्टी है, तो उसमें उस धूल में से भी तो प्लांट्स उग जाते हैं ना. तो प्लांट्स को उगने के लिए थोड़ा सा डस्ट चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, उतना ही चाहिए. तो ये पहाड़ के लिए हमारा मेन सोर्स था उस एरिया का जितना भी पत्ते गिरते हैं या ड्राई वेस्ट है, खाया तो किचन में जो अर्का प्लेट है ना, सुपारी का प्लेट बनता आजकल, वो सब है. ये सब कुछ हमने रिसाइकल किया, उसी का हमने सॉइल बिल्डिंग किया. काफ़ी सारे किचन से बहुत सारे ट्रैक्टर भर के आते थे, वेजिटेबल पील, वो सब से हमने सॉइल बिल्ड किया. एंड पहाड़ के ऊपर एक 30 डेज़ में बन चुका था, एंड 90 डेज़ में हमने हार्वेस्ट भी कर लिया. एंड आज एग्जैक्टली 10 साल लगे मुझे इस स्टेज में ये बताने के लिए, आपने मौका दिया इसलिए. और ये 10 साल में वो इतना सुंदर पैराडाइज है कि सच में इट्स अमेजिंग. आप लोग ज़रूर आइएगा. सो आपने बताया 18 दिन में या 30 दिन में सॉइल, कोई भी सॉइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉइल को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. Okay. देखो अभी हमारा जो मिट्टी है ना, डस्ट हो चुका है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, काफ़ी एरोडेड है. न्यूट्रिशन के बिना हम जो भी लगाते हैं बहुत स्लो प्रोसेस में आती है और थोड़ा के बाद स्टॉप हो जाती है. तो हम जब सॉइल बोलते हैं ना, तो उसका मतलब है टॉप सॉइल. अभी हम सब सॉइल में खड़े हैं. Okay. क्योंकि हमने पिछले 50 साल से सॉइल बिल्डिंग नहीं किया है. हमने बिल्डिंग्स बनाए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज सब यूज़ किया है, लेकिन सॉइल बिल्डिंग कभी नहीं किया. Okay. समझ रहे हो? एक ये प्लैनेट अर्थ में मिलियंस 2 मिलियन से ज़्यादा साल लगे 1 इंच सॉइल बनने में. उतना मिलियन साल में 1 इंच सॉइल बना. 1 इंच, तो सोचो हम इतना सॉइल के लिए कितना मिलियन साल लगा होगा. तो हम सॉइल बिल्डिंग करना छोड़ दिए इतने सालों में, 50-100 सालों में. तो डस्ट है तो डस्ट से एलर्जी होती है, तो सब लोग मास्क पहन लेते हैं, डस्ट एलर्जी है. तो 18 डेज़ वाला जो पूछ रहे हो, इसको हम बर्कली प्रोसेस बोलते हैं. ये एक नेचुरल वे ऑफ बिल्डिंग सॉइल. हम लोग पर्माकल्चर में क्या करते हैं ना, मिमिक करते हैं नेचर को. नेचर जैसा है, प्रकृति जैसा है, उसको हम वैसा ही कैसे कर सकते हैं. क्योंकि हम अलाउ नहीं करते हैं ना कि सिटी में पेड़ लगाया तो पत्ते गिरे तो पत्तों को वहाँ नहीं छोड़ते, क्योंकि हमको सुबह झाड़ू करके बाहर फेंक देना होता है, क्योंकि वो साफ दिखना है, राइट. तो वो पत्ता कहाँ जाएगा? तो हमको उसी को, जैसे नेचर ने सॉइल बनाया, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब से मिला के एक प्रोसेस है. तो 18 डेज़ में हमारा बहुत सुंदर सा टॉप सॉइल बन जाता है. राइट. तो ओके, तो मुझे ये बताइए कि एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक और पर्माकल्चर, ये सब में मेजर डिफरेंस, जैसे मुझे इतना पता है कि जितना गूगल ने बताया कि परमानेंट एग्रीकल्चर मतलब पर्माकल्चर मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर, जिसे बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है या फिर पेस्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं है. तो ऑर्गेनिक और पर्माकल्चर में कुछ फ़र्क है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऑर्गेनिक कोई प्रोड्यूस या प्रोडक्ट नहीं होती है. ऑर्गेनिक जो है एक वे ऑफ लिविंग है ना. आप समझ पा रहे हैं ना डिफरेंस? यहाँ पे सारे प्रैक्टिशनर्स हैं. वेरी नाइस. ठीक है. तो वहाँ अभी पीछे मैंने आलाप भाई करके उनको जस्ट देखा. हाँ. सो वो उन्होंने अपने पूरे घर को जंगल बना रखा है. वाओ. सो ऐसे ही लोग हैं, तो आप सीधा अपने टॉप गियर में ही जाओ. टॉप गियर. हाँ, तो ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि हमको नेचुरल तरीके से सब कुछ करना है. ठीक है.
इसका रिजल्ट पाने के लिए हम लोग को एक सिस्टम चाहिए, एक सिलेबस चाहिए। हम ऑर्गेनिक कैसे करें, ऑर्गेनिक कैसे बने और कैसे उसका आउटपुट इनपुट सब कुछ हो, ये बनाने के लिए जो सिस्टम चाहिए वही पर्माकल्चर सिखाती है, राइट? इलेबरेट करिए प्लीज। जैसे कि हम लोग 100 ईयर से नॉलेज शेयरिंग नहीं हुआ है ना? हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर क्या करते थे, कैसे करते थे, एग्जैक्टली हम आज के लाइफस्टाइल में हम नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आज हम क्विकली कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक का मैटर कहाँ से लाएंगे? ऑर्गेनिक मतलब इंटीग्रेटेड होता है, तो हमको सब कुछ एक साथ करना होता है, बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लगाने होते हैं, एंड मोनोकल्चर से हट के मल्टीपल क्रॉपिंग करना है। चिकन्स, शीप, काऊ सब कुछ होते हैं वहाँ पे, नेचुरल लिविंग में आते हैं, तब जाके ऑर्गेनिक हुआ, है ना? ऑर्गेनिक को रीच करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, इसमें फ्यू एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करके बहुत सिंपल तरीके से हम नेचुरल वे में आ सकते हैं। ओके और दूसरा जो आप मुझे कल बता रहे थे कि अगर हमने आम को अकेले इधर लगा दिया तो वो अकेला बोर हो जाएगा, तो उसके साथ हमें उसका सपोर्ट करने के लिए कुछ बनाना चाहिए और उसको सपोर्ट करने के लिए और कुछ बनाना चाहिए। सो 3 लेयर बनते हैं वैसे कुछ? नहीं, मैंने 3 सिस्टर्स यस यस। हाँ, 3 सिस्टर एक क्रॉप पैटर्न है। हम जब भी हम सिंगल कल्टीवेशन करते हैं, हमको मक्का चाहिए ना, हम मकई लगा देते हैं तो पूरा, तो काफ़ी सारे पेस्ट के अटैक होते हैं, फिर न्यूट्रिशन की कमी होती है, फिर हम इंटरफेयर करने लगते हैं, ये डालो वो डालो, जीवामृत, मेहनत पे मेहनत लगे रहते हैं। तो हम अगर मिक्स्ड क्रॉप करते हैं तो वही 3 सिस्टर्स जो है बहुत फेमस है। जब हम कॉर्न लगाएंगे एग्जाम्पल, तो साइड में जो गैप है वहाँ धूप लगेगी, जो खरपतवार आ जाएंगे, है ना, वीड्स आ जाएंगे, फिर आपको क्लीनिंग के लिए उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। देन वाटरिंग का प्रॉब्लम, हर चीज़ में एक एक एक्शन करना पड़ता है। तो जब हम कॉर्न लगाएंगे तो उसके चारों साइड में कुछ बीन्स के बीज लगा देंगे। तो बीन्स का कल्टीवेशन के हमारे लिए हमको कैनोपी या ट्रेलिसेस बांधने पड़ेंगे, तो वो खर्चा होता है। तो ये कॉर्न को पकड़ के बीन्स आ जाएगी। तो फिर भी खाली जगह ज़मीन का है जो ग्राउंड कवर बोलते हैं, कवर क्रॉप, तो हम अगर सीजनली कर सकते हैं, पम्पकिन्स लगाया, खीरा लगाया, जो भी ग्राउंड पे चल रही है वो सब एक लाइन साइड पे डाल दिया, तो कॉर्न के अंदर अंदर वो भी चले गए। तो इसको 3 क्रॉप एक साथ जो करते हैं, 3 सिस्टर्स, जो बहुत फेमस है, सिंपल से सिंपल कोई भी कर सकता है। इससे भी अगर और अच्छा करना है तो हम कुछ मैरीगोल्ड लगा दें साइड में, फिर तूर दाल लगाना एक तरफ जो कि विंड ब्रेकर का काम करेगा, एंड पेरिनियल लगाएंगे। पेरिनियल मतलब तूर दाल जो फेंस में लगाते हैं वो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप टिल कर दिया नेक्स्ट टाइम फिर लगाया, फिर मेहनत नहीं करना है, कम मेहनत करना है, ज़्यादा प्रॉफिट पाना है, दैट इज़ पर्माकल्चर। राइट। और मैडम अभी हम जब मातर से वापस आ रहे थे तो आपने बताया कि रोड के, बाय द वे यहाँ पे नंदिता है, वो बहुत बड़ी लैंडस्केप आर्किटेक्ट है। तो हम नंदिता के लिए ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली अभी बनाया कि क्योंकि वो ऐसे ही जस्ट जब सबको ब्यूटीफुल चाहिए, राइट, घर के आजू बाजू सब ब्यूटिफिकेशन चाहिए, तो हमें ब्यूटिफिकेशन के साथ उसको सस्टेनेबल बनाना है या ऐसे कुछ जो इकोसिस्टम को या इकोलॉजी को एक्चुअली बेनिफिट करे, तो वैसे कुछ कर सकते हैं। जैसे रास्ते में था तो आपने बोला कि अभी इसमें मेहंदी लगी हुई है, राइट, तो मेहंदी से हम एक्चुअली लोगों को काम दे सकते हैं, या कोई ऐसा फ्लावर को जो लाइट भी रोक दे और इकोसिस्टम का भी काम करे। ये हाईवेज पे जो देखा जी था जी उसका, हाँ, हाईवेज पे मोस्टली धुरंता लगाते हैं, पेपर फ्लावर लगाते हैं, एंड काफ़ी सारे इजी मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस बोल सकते हैं कि रोड साइड में तो कोई जाके काम नहीं करने वाला, उसका कटाई छटाई, प्रूनिंग या फिर हार्वेस्टिंग कुछ नहीं होने वाला है, एंड दैट इज़ ओनली फॉर द बैरिकेड फॉर द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो ड्राइव करते हैं उसमें आँख में रोशनी नहीं पड़े उसके लिए।
तो हम लोग बहुत सारे एडिबल, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड देयर कल्चर, अब जैसे साउथ में हम लोग का फूल लगाते हैं, जैसे नंदी बट फूल, ये है ना, नंदी बट नहीं, अरली बोलते हैं, ऑरेंज कलर का, जो बंचेस में, बुशेस में आते हैं, तो वैसे फ्लावर लगाते हैं जो कि रूरल लोगों को उसमें से जो हार्वेस्ट है उसका माला बना के बेचते हैं, तो उनको एक लाइवलीहुड मिल जाता है. सम प्लांट विच इज़ गिविंग यू ए हार्वेस्ट फॉर द पीपल नियर बाई, लोकल पीपल, एंड दे विल गेट सम इनकम. तो यहाँ मैंने देखा कि पेपर फ्लावर एंड धुरंता बहुत है, जिससे कि जो थॉर्न्स निकलते हैं उसको कोई ना तो कंपोस्ट कर सकते हैं, वो कुछ दिन बाद कहीं और जलेंगे, कहीं तो डाल के इसको जलाते ही हैं, सब जगह में मैंने देखा है, दे बर्न इट, सो दैट इंक्रीजेस अगेन टेम्परेचर. तो हम ऑल्टरनेट कुछ और सोच सकते हैं जिससे कि लोगों का बेनिफिट हो एंड सम लाइवलीहुड लोकल लोगों को हो जाए. जैसे मेहंदी मैंने एक सजेस्ट किया है, एंड इंडिगो मेहंदी ऐसे मिक्स करके भी लगा सकते हैं, सबको रोज़ काम आ जाती है. एंड बहुत सारे ऐसे बुश में हैं जो. और मैडम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में खुद से अपने खुद के वेजिटेबल्स लगा रहे हैं और खुद का ही एंजाइम्स बना रहे हैं और खुद का ही सब कुछ खुद कर रहे हैं. तो एक्चुअली मैं अभी तक, मुझे पता नहीं सब लोग समझ पाए होंगे नहीं, पर पर्माकल्चर एग्जैक्टली, पर्माकल्चर और सस्टेनेबिलिटी का रिलेशन प्रिसाइजली आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्योंकि देखो यहाँ पे आई एम श्योर बहुत कम लोगों को पता है कि पर्माकल्चर एक्चुअली क्या है. तो हमने बहुत सारी बातें करी, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्माकल्चर के बारे में अभी और थोड़ा सा उनको स्पेसिफिक क्या उसका सिस्टम रहता है, कैसे काम करता है, ये पूरा अगर कुछ तो उसका ब्रीफ आप दे पाएँ तो प्लीज़. हाँ, पर्माकल्चर है ना एक अर्बन प्लानिंग एंड रूरल लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, दोनों में बहुत सुंदर सा सेट हो जाएगा. अर्बन में जब रहते हैं तो अर्बन के हिसाब से हम कर सकते हैं, रूरल में जैसे हैं उसके हिसाब, क्योंकि जगह उस तरह से होगी. तो मुझे ये समझ आ रही है क्वेश्चन, क्योंकि अर्बन के लोगों को ये रहेगा कि हम मैक्सिमम अपना जगह को कैसे यूटिलाइज करेंगे एंड रिसाइकल कैसे करेंगे, रीयूज़ कैसे करेंगे, है ना. दैट इज़ वेरी इजीली वी कैन डू इट. इसमें जो अंडरस्टैंडिंग इतना ही है कि हम जैसे अर्बन का बात करेंगे तो एक कम्युनिटी में आना है, साथ आना है, 4 लोग मिल के वो कर सकते हैं. क्योंकि इसमें एक जन का अकेले का वेस्ट लेके करेंगे तो हमको उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए. हम बालकनी में जितना भी करना चाहेंगे हमको वो जगह कम पड़ जाएगा. तो कम्युनिटी बनाने के लिए अर्बन प्लानिंग इज़ वेरी गुड. एंड रूरल में पर्माकल्चर बोलोगे तो एक लैंडस्केप डिज़ाइनिंग है. तो कोई भी लैंड लेते हैं ना, हम पहले क्या करते हैं, दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि पहले फेंसिंग डाल दो, वी शुड बी सेफ एंड सिक्योर, एक घर बना के सिक्योरिटी बैठा दो, वी आर फाइन, है ना. तो ये जो है ना, सबसे पहले फेंसिंग डालना और बोरवेल डालना एंड एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी इज़ ए सिक्योरिटी. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर नॉट ट्रेन्ड फार्मर्स. सो हमको ट्रेनिंग में लोगों को लाना है. रूरल में हम ये जब 3 काम करना छोड़ दिए तो आप पूछेंगे क्या, कहाँ से शुरू करोगे, है ना. तीनों काम नहीं करना है, फेंसिंग नहीं डालना है, बोरवेल नहीं डालना है, सिक्योरिटी को ट्रेनिंग देना बट सिक्योरिटी नहीं चाहिए. तो सबसे पहले लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में आता है अर्थवर्क. अर्थवर्क का मतलब है कि लैंड के स्लोप के हिसाब से, विंड के हिसाब से, विंटर सन एंड समर सन के हिसाब से एंड लैंड को हम असेस करते हैं कि इसमें जोनिंग भी है कि कहाँ से जानवर आ सकता है, कहाँ से रिस्क है, और पानी कहाँ से लीक हो रहा है और कहाँ से अंदर आने का रास्ता है. तो हमको मैक्सिमम पानी अंदर लेना है, मैक्सिमम अंदर ही रखना है, बाहर छोड़ना नहीं है. दैट इज़ कैप्चरिंग वाटर इज़ अ फर्स्ट थिंग. तो पानी के लिए पहले डिज़ाइन बनाते हैं.
तो कहाँ स्वेल बनाना है, कहाँ चेक डैम रखना है, कहाँ पॉन्ड रखना है, ये 3 काम करने के बाद में हमको पता चल जाता है कि पानी का स्लोप कैसा है और पानी लीक कैसे नहीं होगा। इसके बाद हमको परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर देखना है, पास में रिवर है या पॉन्ड है या क्या सोर्स है कि हमको ग्राउंड वाटर कैसे ऊपर लाएंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो रीजेनरेटिव वेल बनाना है, कुआं बनाना है, ठीक है। कुआं बनाने से क्या होगा, परमानेंटली पानी वहाँ रहेगा। ये एक बेसिक डिज़ाइन है। अब इतना में पानी नहीं रुकेगा क्योंकि जब तक हम प्लांटेशन नहीं करते हैं, तो उसके लिए डिज़ाइन आएगा नेक्स्ट कि आप प्लांट्स कैसे लगाओगे, कहाँ पे क्या लगाओगे, कौन सा चीज़ पानी पकड़ने के लिए अच्छा है, कौन सा पानी के अंदर अच्छा है। तो ये सब प्लानिंग में आता है। इसके बाद जाके फेंस की बात आएगी। जब फेंस की बात आएगी तो नेचुरल लाइव फेंस कहते हैं। लाइव फेंस मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं उसी से 5 लेयर प्लांटिंग करेंगे तो वो एक नेचुरल फेंस है। 5 लेयर प्लांटिंग मतलब 5 लेयर प्लांटिंग मतलब लाइव फेंस। लाइव फेंस का मतलब है प्लांट्स से फेंसिंग करना। उसके लिए हमको न तार चाहिए, न सीमेंट चाहिए, न फिर कंक्रीट का कुछ बनाना है। प्लांट्स को ही ऊंचाई से लेके हाइट वाइज 5 लेयर। और पर्माकल्चर के आपने एथिक्स मुझे बताए थे कुछ 5-7 एथिक्स, क्या उसको? हाँ, तीन। ओके। पीपल केयर, अर्थ केयर एंड फेयर शेयर। तो ये जो सिस्टम है ये हमको बहुत अच्छा से सिखा देती है कि जो हम छोड़ के आए हैं पीछे ना, उसको हम वापस पीछे कैसे जाएंगे, उसी का रास्ता दिखाती है। तो हम पीपल केयर जो भी ये प्लैनेट में है पीपल के लिए ही है, राइट। और जो भी पीपल यूज़ कर रहे हैं वो अर्थ से ही मिल रही है एंड वापस अर्थ को ही जाना है। तो फेयर शेयर थर्ड वन इज़ एनीथिंग सरप्लस शुड गो बैक टू पीपल और अर्थ। या फिर पीपल को दे दो हमारे पास ज़्यादा है, या फिर अर्थ में दे दो जो डिकम्पोज हो जाएगी। एनीथिंग जो भी है, नॉलेज है, एक्स्ट्रा जो भी है, सब कुछ आइदर पीपल के लिए है या अर्थ के लिए है। दैट इज़ फेयर शेयर। एंड फ्यूचर केयर भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझने के लिए और आसान रहेगा, कोई भी प्लांट ले लीजिए, उसका 3 पार्ट कीजिए। कॉर्न लीजिए या कोई भी केला, कुछ भी। तो इसको तमिल में बहुत अच्छा से बताते एक राइमिंग में। ऊपर का भाग, बीच का भाग, नीचे का भाग। सो अगर धान लिया तो ऊपर का भाग घर के लिए, बीच का भाग गाय के लिए, नीचे का भाग अर्थ के लिए ना। आड़ी वीटक नड़ माटक, ऐसा तीसरा मन्नक। तो ये ऐसे बहुत सुंदर से एक गीत के जैसा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, जब तमिल में बोलते हैं तो लाइक दैट। आप कॉर्न भी लिया तो एक पार्ट आपने लिया, मक्का ले लिया, बाकी का क्या किया, गाय को दिया, कैटल्स को दिया। जो बच गया रूट है या जो भी है वो अर्थ को, जो कि बाद में रीजनरेट होता है। एंड एक पार्ट सीड के लिए रखते हैं, इसलिए इसको हम फेयर शेयर एंड फ्यूचर केयर बोलते हैं। तो हम बार बार सीड नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए थोड़ा सीड अपने लिए रखना है। तो आप केला भी ले लो, आपने केला का सारा पार्ट आपने यूज़ किया, फूल खाया, फल खाया, स्टेम, और उसका जो रीजेनरेटिव क्या है, उसके साइड में जो प्लांट्स आते हैं उसी को फिर से लगाते हैं। अब जब हम ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हम टिश्यू कल्चर या जेनेटिकली मॉडिफाई को जाते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं है। ये आप गाना जो गा रहे हो ये गा नहीं सकते हो। आप हर साल नया बीज खरीदना है, बीज से बीज नहीं आती है। और हर साल केला में एक ही बार तार आएगा बंच, सेकेंड टाइम नहीं। लेकिन हमारा इंडिजिनियस क्या है, रिप्रोडक्शन चलते रहता है ना। तो सारे पहले के जो ओरिजिनल जैसे केला था, तो आपने मुझे बताया था कि केले में बहुत सारे सीड्स हुआ करते थे। आई एम श्योर इसमें से किसी को पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को होगा कि केले में सीड होते हैं।
बड़े बड़े सीड होते हैं, पेपर जितने सेड होते हैं, और कटर पटर करके हम लोग खाते थे बचपन में। एंड उसका स्पेशलिटी क्या है ना, कुछ लोगों को पसंद नहीं रहता वो सीड, इसलिए सीडलेस में जब आ गए तो हम लोग सीड को छोड़ दिए। लेकिन उसका स्टेम इज़ वेरी स्पेशल, बनाना स्टेम। केला में सीड इसलिए होता है, और केला का स्टेम से जो जूसेस बनते हैं ना, उसमें हमारा किडनी स्टोन 2-3 दिन में क्लियर हो जाते हैं। सबको पता होगा ना, केला स्टेम का जूस पीते होंगे? नहीं मालूम? किडनी स्टोन के लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप केला का जो भी पार्ट है सारा खाने लगो ना, आपको कभी एटलीस्ट महीना में एक बार स्टेम का सैलड भी बना के खाओगे ना, तो कभी स्टोन नहीं होगी। तो ये जो सीड है ना, तो लोगों को ये सीड के साथ चबा के, इवन अनार आजकल बिना सीड के आती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सीड इज़ हर्टिंग आवर डेंचर्स, और अपना गम को तकलीफ़ होता है। लोगों को लगता है कुछ घोल के पी दो ठीक हो जाएगा, राइट? उनको अवेयरनेस नहीं है। ओके, तो जैसे आपने अभी बताया ना कि अब ऐसा परमा कल्चर और इंडियन कल्चर का कोई कुछ कॉमन हम निकाल सकते हैं, जैसे आपने बताया ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक, राइट? दिस इज द वे टू रीच योर ओन कल्चर। अब ये जो फाउंडर, ये जो सिस्टम जिसने भी किया, बिल मॉलिसन ने, वो ऑस्ट्रेलियन थे। उन्होंने 1960s में 70s में उनका पूरा बचपन इस खोज में गया कि वो एक सॉ मिल में, मैं थोड़ा डिटेल बताऊं? प्लीज। वो एक सॉ मिल में काम करते थे, वो ही वॉज इकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, सब थे। वो उनके फादर के साथ जब एक बार जब पेड़ कटते थे, तो एक बार वो कोलैप्स होता हुआ इकोलॉजी को उन्होंने देखा, तो उनको वो डर हो गया कि फ्यूचर में क्या होगा। देन ही स्टार्टेड डीप एनालाइजिंग एंड रोट द बुक परमाकल्चर 1। एंड आज वो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो के 140 कंट्रीज़ में साइलेंटली एवरीबडी इज़ वर्किंग। तो इसमें कुछ सिस्टम है जो आपको ऑर्गेनिकली वापस अपने रूट्स को ले जाने के लिए बताती है। लेकिन एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया में हम अपने ही कल्चर को तो वापस जाना चाहते हैं ना, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम परमानेंटली कैसे एग्रीकल्चर को वापस जाएंगे और परमानेंटली हम अपना कल्चर को कैसे फॉलो करेंगे, उतना ही है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इससे रूरल जो एक्चुअल मतलब इंडिया में जो बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो परमा कल्चर से उनको जेन्युइनली कुछ हेल्प होगा या नहीं होगा? और मुझे लगता है कि लोग को ना ये इंग्लिश का जो नाम है ना, उससे तकलीफ है। परमा कल्चर बोलते ही ना लगता है कि कुछ बड़ा रॉकेट साइंस है। नहीं, उन्हीं को, मैंने हमको अपने ही दादाजी जैसे थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कैसे थे, वैसे ही उनके जैसे बनना है। सोचने में तकलीफ कुछ नहीं है ना। एक्सेप्टेंस के लिए हमको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है इसको, नॉलेज को। जैसे हम चेन्नई में, तमिलनाडु में नम्मालवार करके एक थे गुरु, उनके जो शिष्य लोग हैं उनको निरंतर वेलान्मयम करके बोलते हैं। निरंतरम मतलब परमानेंट, वेलान्मयम मतलब एग्रीकल्चर। तो उन्होंने उस भाषा में उसको कन्वर्ट किया। निरंतर वेलान्मयम, वो हम तमिलनाडु के लोगों को बहुत जल्दी से एक्सेप्टेंस हो जाता है। अब हम यहाँ पे जब परमानेंट एग्रीकल्चर बोलो या परमानेंट कल्चर बोलो, तो ये गांव में हो या सिटी में हो, वो बिलोंगिंगनेस थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो हम स्थायी कृषि बोल सकते हैं। परमानेंट मतलब स्थायी, एग्रीकल्चर इज कृषि। तब स्थायी कृषि बोलेंगे तो सच में आप लोगों को रीच करोगे। मतलब उनसे उनका फ़ायदा होगा, नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा? फ़ायदा तो सबको होगा। आपको मतलब मैं अगर ट्रेडिशनल खेती कर रहा हूँ, हाँ, मेरी ज़मीन जो भी है अभी तक, जो भी ख़राब हो चुकी है या अच्छी हो चुकी जो भी है, और मुझे उसमें से प्रोडक्शन लाना है, मेरा घर चलाना है, और उसके पास पैसा कम है, तो फिर परमा कल्चर कैसे काम करेगा? बहुत ज़्यादा रिच बन जाएगा वो बंदा तो। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल थोड़ा सा और बता देती हूँ डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन सब में अंदर रहता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज़ लेबर इंटेंसिव,
बहुत मेहनत करना पड़ता है उनका, क्योंकि टिलिंग में खर्चा है, डीवीडिंग में खर्चा है, फिर आजकल और भी जीवामृत बनाओ, घोल बनाओ, बहुत कुछ बोलते हैं कि ट्रेडिशनल है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इट्स ए लेबर इंटेंसिव, वेदर दे आर एजुकेटेड और फार्मर और हाइब्रिड लोग हैं, सिटी में रहते हैं, गांव जाते हैं, सबके लिए वर्क इस वर्क ना, तो लेबर इंटेंसिव है। अगर आप कन्वेंशनल मेथड, मॉडर्न एग्रीकल्चर बोलोगे ना तो वेरी हाई एनर्जी इंटेंसिव है। आपको बहुत सारा ग्रीन हाउस बनाना है, ड्रिप्स लगाना है, फिर आपको पेस्टिसाइड देना है, बहुत रिच होना चाहिए। अगर आप पॉली हाउस लगाते हो या फिर हाइड्रोपोनिक्स वगैरह करते हो तो आपको बहुत पैसा चाहिए। आप पैसा लगाते रहोगे और बीमारी भी लाते रहोगे और कैंसर हॉस्पिटल भी बढ़ता जाएगा। बीमारी और उसका क्या लेना है? क्योंकि जो आप कन्वेंशनल मेथड में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर करोगे तो वो सीड आपका जीएमओ होगा और जीएमओ विदाउट केमिकल्स नहीं आएंगे, उनको फीड करना पड़ेगा, तो खर्चा। सो जो जीएमओ वाले मार्केट में जो इंडस्ट्रियल, आपको लगता होगा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इज फीडिंग द सोसाइटी, नहीं, 10% मार्जिनल फार्मर्स आर फीडिंग अस। तो खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ब्रोकली 200-300 रुपये में मिलती है। मैं गांव में ब्रोकली उगाऊंगी, मैं 20 रुपये में दे दूंगी आपको। तो कब शुरू कर रहे हैं आप? आ जाओ। हाँ, जब हम अपना थोड़ा मेहनत और थोड़ा प्यार और थोड़ा बातें भी करेंगे प्लांट्स के साथ में ना, तो सच में बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं। बाय द वे, हमने जो मूवी में देखा ना कि प्लांट के साथ जो बात करते हैं, राइट, कि तो मैडम एक्चुअली बात करती हैं। मैं उनको अभी बोलूँगा कि आप क्या बात कर रहे हो, हमें बताओ। और अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने मुझे ऐसे ही रास्ते पे से बहुत सारे चीज़ ऐसे दिखा दी, अरे मीट ये तेरे किडनी के लिए अच्छा है, ओ तू ये खा ले, ये तेरे इसके लिए अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे प्लान्स जो हमारे एक्चुअली रोड में, मतलब एक्चुअली बाहर ही है, पर हमें पता नहीं है कि ये हमारे गम के लिए अच्छे हैं, ये हमारे किडनी के लिए अच्छे हैं। तो मैडम थोड़ा फ्लावर्स और ऐसे वीड्स, जो आपने सुबह बोला वीड सीड वाला कुछ, तो सीड दैट व्हाट वी ईट एंड वीड दैट वी डोंट, ऐसा कुछ। तो या तो हम जो भी खा रहे हैं ना वो सब कुछ सीड ही तो खा रहे हैं ना, जीरा से सरसों से लेके जो भी खा रहे हैं सीड ही खा रहे हैं ना, और जो हम नहीं खाते हैं उसी को हम वीड बोलते हैं, है ना। तो वीड कौन सा वीड अपने आज देखा या मातर में देखा या जंगल में ऐसे ही चलते दैट इज अनकल्टिवेटेड हर्ब्स है, वो वीड्स नहीं है। हाँ, वीड्स जो है हम एडिबल नहीं है, हम खा नहीं सकते हैं वीड्स को। तो वीड्स और हर्ब्स में डिफरेंस कोई कैसे कर सकता है? वीड्स एंड हर्ब्स में, हर्ब्स तो जो है ना, आप अभी हम लोग हर्ब्स का तो लिस्ट बना रहे हैं ना। हाँ, सबको देंगे, सबको देंगे फोटो के साथ। સો એક અહીંયા એવું બહાર વીડ છે કે તમારા દાંતમાં કે ગમ્સમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો એમાંથી જે દૂધ નીકળે છે એ તમે એક બાજુ ચાઈને થોડી વાર મૂકી રાખો તો તમારા ગમ્સનો પ્રોબ્લેમ ઇન્સ્ટન્ટિવલી સારું થઈ જાય. અને આપણે જે પેલું પિક્ચરમાં જોતા હતા ને કે લોહી નીકળ્યું ને પેલા હીરોએ જઈને કંઈક જડીબૂટી તોડીને આમ મસીને નાખ્યું, तो એવું एक्चुअली प्लांट है. वो प्लांट कौन सा है जिससे आपका खून रुक जाता है? हाँ, उसका बोटानिकल नेम बताना पड़ेगा. हम लोग कुछ उसको क्या अपने लोकल लैंग्वेज में जो भी प्लांट्स है ना, सबसे सुंदर है हमको अपना मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में या फिर हम जो भाषा जानते हैं उसमें याद रखना. तो मेरा हमेशा एक आदत है, मैं कर्नाटका में रहती हूँ तो कन्नड़ा में काफ़ी सारे हर्ब्स जानती हूँ और उसको वैसा ही मैं याद रखना चाहूँगी. एंड तमिलनाडु, तमिल हम लोग मदर टंग है तो बहुत सारे नेचुरली वो हम में आ जाती है वो नाम. एंड हिंदी ऑफ कोर्स हिंदी में भी काफ़ी रखते हैं. तो ये जो है इसको काका एला बोलते हैं और ये डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है. एंड जो कि जिसका कि फूल ऐसा हेड जैसा है, छोटा फूल और स्टेम, हम लोग ऐसे मार के खेलते थे कितना दूर जाएगा बचपन में, याद है? ये सारे जो मैम बोल रहे हैं ना वो एक्चुअली बाहर है.
हाँ। सो ऐसा सब आप Just वॉक crush करते किया, रहोगे वो हाँ, दिखता क्रश रहेगा। किया और लगाया तो इवन डीप कट होने से भी इंस्टेंटली ब्लीडिंग रुक जाते हैं। आप सबको पता होगा, आप नहीं, फार्म I'm में sure चलते सबको- होंगे, पता है हाँ, क्या? बताइए, नाम सतीश भाई ने बताइए, खबर दिया, सतीश नाम पटेल। बताइए। ओके ओके हाँ, छोटा हाँ, स्टेम हाँ, लंबा हाँ, है, right. हाँ। सतीश भाई भी हमें हेल्प करेंगे बुक लिखने वेरी में। नाइस, वेरी नाइस। तो आप लोग को पता है ना, बताइए आप लोग भी अपने लैंग्वेज में। હવે આપણે એક કામ કરીએ, હું એમને સવાલ તો સાંજ સુધી પૂછીશ કારણ કે એમની જોડે 2 દિવસ રહ્યો છું, તો અહીંયા બધા જ ને બધું જ ખાસું બધું ખબર છે, તો જો તમારે આપણે એક કામ કરીએ, ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન જ રાખીએ રાધર દેન ભાષણ. તો મને અત્યારે આંખોની સામે સીધા લોકેન્દ્ર સર દેખાયા છે, તો લોકેન્દ્ર સર તમે કઈ સવાલ સરસ પૂછવા માંગો? લોकेंद्र सर सस्टेनेबिलिटी के लिए, वाटर से कंजर्वेशन के लिए बहुत सालों से बहुत सीरियस काम कर रहे हैं. आइए, तो सर आप आइए, एक आध सवाल आप भी उनके लिए पूछिए एक chat। और थोड़ा चैट करिए, फिर मैं किसी और को इनवाइट करता हूँ. सर आइए, दिस इज अ इनफॉर्मल सेशन, शो प्लीज आइए सर. लोकेंद्र सर ने मैं पकड़ी लिया है, दौड़ता दौड़ता है. आइए आइए, बैठिए। आपके बारे में खास बताया था मुझे मीत ने, हाँ। तो मतलब ये तो आना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा। मैं एक चीज़ सोच रहा था, ये जो इतनी अच्छी बातें आप कर रही थी और बहुत सारी कोशिश हो रही है सब जगह कि केमिकल से दूर जाएं, नेचर के साथ वापस जुड़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वही खाएं, उसी तरह से उगाएं, लेकिन डेटा ऐसा बता रहा है कि फिर भी भारत में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का कंजम्पशन अभी भी बढ़ रहा है। मैं जैसे कपिल भाई हैं बड़ौदा में, उनके साथ भी कभी बात करता हूं तो उनको ये पूछता हूं कि हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक मूवमेंट चल रहा है भारत में, और ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फार्मर्स, ऑर्गेनिक फार्मर्स भारत में हैं। इन टर्म्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड, ऑर्गेनिक कल्टिवेबल लैंड भी भारत में सबसे ज़्यादा है। बट मैं एक थोड़ा बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो लेकिन फिर भी ये केमिकल और पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, और हम कुछ फार्मर्स के साथ कभी काम करते तो एक पॉइंट पर आके ये बोलते कि नहीं, थोड़ा केमिकल तो डालेंगे तो प्रोडक्शन मिलेगा। उसका क्या करें? कुछ आपके पास कुछ सुझाव हैं प्लीज़? आपने जो बड़ा सा दूधी उगाया था ना, उसका स्टोरी बताना। इसमें है ना, मैं 2 टाइप का आंसर देना चाहूँगी, ठीक है? हम जब एक बड़ा एक मूवमेंट है, ये एक आंदोलन है, ये छोटी बात नहीं है कि हम 100 साल पीछे जाना है तो हम ऐसे जंप करके नहीं जा सकते हैं। ये बहुत, हम यहाँ आने के लिए हमको 200 साल लगा, इतना सारा इंटरफेरेंस करके बर्बाद होने को 200 साल लगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम लोग डेवलप हुए हैं, हम लोग बर्बाद हुए हैं। तो जैसा कि बोलते हैं ना, 1 प्लैनेट 1 लाइफ, अभी जियो खाओ ख़त्म कर दो, ऐसे हम लोग जी रहे हैं, राइट? तो इतना साल लगा वापस हमको जाने में, हम चाहते कि इमीडिएटली हो जाए, वो नहीं होगा। इसके लिए हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटा छोटा कम्युनिटी पॉकेट, छोटा छोटा, देन लोकल, देन नेशनल, देन इंटरनेशनल, देन ग्लोबल। हमको ऐसे आगे बढ़ना है। हम एक साथ हम बोर्ड एग्ज़ाम देंगे बोलने से नहीं होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड सब पढ़ना पड़ता है। तो छोटा सा कम्युनिटी, देन फिर छोटा छोटा जैसे कि फार्मर्स मार्केट, लोगों को कैसे हम इन्फेक्शन फैलाएं, उतना इन्फेक्ट कर दो, इतना ज़्यादा कि जल्दी इन्फेक्शन हो जाए। ये ऑर्गेनिक हो या नेचुरल हो, केमिकल से बाहर निकलने का जो दवाई है ना, वही है आज का मीटिंग। ठीक है? और रही बात आप जो बड़े लेवल पे केमिकल्स का बात जब करते हैं ना, तो डरा देता है कि नहीं, वो एक डर है, एक खौफ है। इसका अंत कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि व्हाट इज़ केमिकल आप जानेंगे ना,
सोच नहीं सकते हैं ये इतना डरावना कैसा हो गया। ये जो भी केमिकल्स है इसका ओरिजिन है हमारा डेवलपमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फॉसिल फ्यूल। जो हम आज कंफर्ट लग्जरी कार चला रहे हैं, जितना हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जितना हम पेट्रोल यूज़ करेंगे, उतना डीजल यूज़ करेंगे, उतना रिफाइंड ऑयल भी उसी का एंड प्रोडक्ट है। और छोटा से छोटा आपका वैसलीन से लेके जो कुछ भी बन रहा है, जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं, जो भी हम करोड़ों लाखों करोड़ों का हिसाब नहीं उसका, everything is coming from the petroleum product. तो chemical is the one part of it. Plastic granule जैसे हैं, chemicals are also petroleum product का end है। तो हम ये 200 साल में जितना हम गाड़ी चलाए हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी कम करना है, हमको ऑल्टरनेट्स पे आने हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली पेट्रोल बंद करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कम कर सकते हैं और अवेयरनेस ला के लोगों को कन्वर्ट करके हम दिखा सकते हैं कि दिस इज़ मच मच प्रॉफिटेबल देन व्हाट यू आर डूइंग विथ केमिकल। केमिकल का क्या अच्छा है क्या बुरा है आप सब लोग जानते हैं। तो इसको हम एक एजुकेशन में ला के, जैसे कॉलेज में कल बताया था, बच्चों से लेके सबको हम इस लाइन, यही वाला ज्ञान को हमको सबको देना है कि अपना जिम्मेदारी अपना खाने पीने का, अपना पानी का अभी से रखना है। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी कहीं से याद आ रही है, आई जस्ट शेयर। शमानिज्म एक दुनिया का सबसे पुराना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहा जाता है। उसकी किताब में पढ़ा था, ऐसे कहते हैं कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड था और उस कार्बन डाइऑक्साइड में कोई जीव जन्म नहीं ले सकता था। तो मनुष्य की आत्मा प्रभु के पास गई और कहा कि ये इतना जहर है, हम कैसे जन्म लेंगे, कुछ कीजिए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, इस जहर को मैं पृथ्वी के गर्भ में डाल देता हूँ। फिर उन्होंने धीरे धीरे वो जहर को गर्भ में डाला और मनुष्य ने जन्म लिया और मनुष्य बहुत अच्छे से जी रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन थोड़ा एजुकेशन आ गया, ह्यूमन बींग्स पढ़ लिख गए और पढ़ लिख गए, फिर उन लोगों ने ज़मीन में छेद करके उस जहर को निकालना स्टार्ट किया और वापस पर्यावरण में डालना चालू किया। जब मैंने ये शामनिज़्म की किताब में ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा कितना सही एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एंड प्रॉबेबली वही हम कर रहे हैं जो इन्होंने कहा, बहुत सही बात है। पेट्रोलियम के डेली 6000 प्रोडक्ट्स हमारी ज़िंदगी में घुस गए हैं। ये माइक्रोफोन से लेके, ये सोफ़ा से लेके, ये मोबाइल से लेके, मेरी गाड़ी और बहुत कुछ सारा पेट्रोलियम है। एंड इफ़ वी डिक्रीज दैट पेट्रोलियम यूसेज समहाउ, probably there is a way, there is an understanding probably. So what she is saying is बहुत मुद्दे की बात है। आई एम वेरी हैप्पी मीत जी, थैंक यू, आपने ये सेशन किया, बिकॉज शायद ये बीज बो रहे हैं विचारों के, शायद ये बीज उगेंगे, कुछ अंकुरित होंगे और धीरे धीरे लोग कन्वर्ट होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो હવે अब हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेहा बेन, તમારી ઈચ્છા ખરી કોઈ સવાલ પૂછવાની? तो आप बैठ सकते हैं, ऐसा ऐसा आई एम कंफर्टेबल। वेरी गुड। मैं अर्बन में रहती हूँ अभी, और ये इको हो रहा है, मेरे को वापस अपने जगह जाना। सो मेरे पास 10 से 60 स्क्वायर फीट का जगह है, उतना ही है, और 60 स्क्वायर फीट में मैं अपना सारा निकालती हूँ। मुझे बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए पूजा के लिए, पान चाहिए, एंड बहुत सारे हर्ब्स, मेडिसन, एंड बहुत टोकरी भर भर के मैं इतना सब्जी उगाती हूँ कि
मुझे 4 लोग को देना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक है तो छोटा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना इंडिजिनियस सीड्स अगर यूज़ करते हैं एंड ये जो सॉइल मैं बता रही हूँ अगर बनाना शुरू करेंगे तो हमारा लौकी इतने बड़े बड़े होंगे लौकी, एंड एकदम टेंडर एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी हमने एक बेड बोलते हैं हम लोग उसको, रेस्ड गार्डन बेड्स, रेस गार्डन बेड्स। तो रेस गार्डन बेड में क्या होता है, इवन 3x6 ले लिया है तो उसमें कुछ लगाए हमने, पंपकिन लगाए 2-3 टाइप के, कुछ खीरा लगाया, वो तोंडली क्या बोलते हैं, कुंदरू हाँ, वो एक लगाया। देन एयर पोटैटो आप लोग सुना है, आलू हवा में होती है एयर पोटैटो। फिर सीम लगाया, क्या बोलते हैं सीम को, आज बताए थे ना, मैं भूल गया। पापड़ी हाँ। अच्छा, थैंक यू। मतलब इतने सारे क्रीपर्स वैरायटी लगाया जो सब ट्रेलिस पे चले गए या फिर आपके कुछ ऐसा शेड है चले गए, तो वो अपने आप होते, उनको सिर्फ इतना एक पंपकिन अगर इतना है तो उसको इतना ही सॉइल चाहिए, है ना। एंड जब हम रेस्ड गार्डन बनाते हैं तो उसका रूट हर जगह जाता है, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, शेक हैंड करते हैं, न्यूट्रिशन शेयरिंग होती है। और हल्दी लगा दिया, मैरीगोल्ड फ्लावर लगा दिया पॉलिनेशन के लिए, एंड कुछ मूली लगा दिया, एंड आपको सीजनल क्या है बीन्स चाहिए। 3x6 में आप मिनिमम एक 20 वेराइटीज़ लगा सकते हो। वाह वाह। जगह इज़ नॉट, लैंड इज़ नॉट द क्वेश्चन। हम बोलते हैं ना कि लैंड नहीं है, मुझे ये टेबल दे दो मैं उल्टा करके उसमें भी कुछ लगा दूंगी। और आज आप जो बता रहे थे ना कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से हम आ रहे थे तो बहुत सारे नेचुरली क्रीपर्स, हाँ फेंस थे, तो उसमें बहुत सारे क्रीपर्स उग गए थे। तो अगर हम वहाँ पे एक्चुअल क्रीपर्स डाल दें जिसमें एक्चुअल वेजिटेबल्स होते हैं तो वो पूरे अहमदाबाद को खिला देगा। ये बहुत ट्रू है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जो अंदर के जो बार्ब्ड फेंस है ना, ये जो 12 प्रिंसिपल बोल रही थी ना, एथिक्स बताया 3, 12 प्रिंसिपल्स एंड फ्यू गोल्स एंड कंपोनेंट्स हैं जो आपको रिजल्ट देगा। इसको आपको एक सिस्टमैटिक से लर्निंग करना है। तो इसमें वन ऑफ द प्रिंसिपल है एजेस आर द मैक्सिमम हार्वेस्टिंग एरिया। हम लैंड को ऐसे देखते हैं, हम लैंड को ऐसे नहीं देखते हैं वर्टिकल में। तो वर्टिकल यहाँ पे वर्टिकल अलग समझेंगे, वर्टिकल है हाँ, पर आप उनको समझाइए कि वर्टिकल मतलब मंडला से भी वर्टिकल आप बना सकते हो और ऐसे भी, तो दोनों समझाइए प्लीज। दोनों समझाती हूँ। मीत इज वेरी गुड इन आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये जो फेंस है ना, फेंस चारों तरफ जहाँ भी फेंस है, तो आप एक छोटा सा इतना जगह चाहिए जिसमें कि आपको अच्छा सॉइल, उसका न्यूट्रिशन 1-2 फीट दे देना है, और उसको साइड से कवर ओवर नहीं करना, अच्छा छोड़ दीजिए। तो एक चढ़ा दीजिए अपना कोई भी प्लांट, वो इतना अच्छा से हार्वेस्ट देगा। उनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए एंड नीचे में न्यूट्रिशन चाहिए। तो मैक्सिमम हार्वेस्टिंग एरिया इज़ द फेंस। आप कहीं पे भी कर सकते हैं ये फेंस में। एंड और एक वर्टिकल गार्डन जो बोलते हैं, हमारे पास अगर 2 ही स्क्वायर फीट है समझो, या फिर ये टेबल साइज़ का सर्कल है, इसी सर्कल में हम ऐसा लेयर स्पाइरल्स बनाएंगे तो आपको 3-4 फीट या इतना फीट तक आपको जगह मिल जाएगी, और उसमें आप पालक लगाओ, धनिया लगाओ, मेथी लगाओ। एक पिक्चर मैं दिखा दूंगी बाद में। पक्का। हाँ, एक्चुअली मैडम ने आज बोला था कि भाई मेरे को तू बोलने कहाँ लेके जा रहा है, मैं तो सबको बोल बाहर है, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं सच में आई एम नॉट ए इंडोर पर्सन। मैं एकदम मोगली टाइप की हूँ, और मुझे छोड़ दो तो मैं जंगल के सारे प्लांट्स बता दूं, खिला दूं, आपका ब्रेकफास्ट लंच वही हो जाएगा। और मैम, मेरा एक दोस्त वहाँ पे आता है, मृणाल वेद करके है, उसका खुद का फिटनेस जिम है। हाँ। तो वो नेचुरल तरीके से या अच्छा खाने से आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रह सकती है, आपको प्रोटीन जो भी मिलता है या जो भी आपकी हेल्थ के, तो नेचुरल खाने से कुछ फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है वो आप कुछ बता पाए तो। इसमें 2 बात बताऊंगी मैं।
एक तो है सिस्टम अपना खाने पीने का टाइमिंग एंड दिनचर्या एंड ऋतुचर्या. दिनचर्या मतलब हम डे टाइम का, ऋतुचर्या मतलब सीजनल जो खाना है. तो ऐसा नहीं कि हम ऊटी में कैरेट उग रही है हम साल भर गाजर खाएंगे, ऐसा नहीं है. गाजर इज़ अ विंटर वेजिटेबल. विंटर में जो जो वेजिटेबल्स होती है वो सब खाने से, लोकली जो ग्रो होता है वो खाना चाहिए एंड सीजनल जो है वो खाना चाहिए. एंड खाने का टाइमिंग ऐसे होना चाहिए कि सनराइज से सनसेट के अंदर में, आयुर्वेदा के हिसाब से हमारा हीट जो अग्नि है डाइजेशन के लिए अच्छा है. तो सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से लिक्विड, एंड लिक्विड जब ब्लड में कन्वर्ट होके हमारा बॉडी को जाती है वो नाइट टाइम है. तो रात को सोना ज़रूरी है और रात को खाना नहीं है. रात भर खाओ और दिन भर सो तो दिन में वो बॉडी वो काम नहीं करती है जो रात में करती है, तो हमको फिटनेस नहीं आएगी. तो जो भी फिटनेस में है दिन में अच्छा से खाइए, रात को अच्छा से आराम कीजिए, बस. નંદિતા, તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન છે? जरूरत है, सॉरी. सब सुनेंगे ना. हम okay, so just going back to that initial thing, ma'am. In my view, permaculture is now looked at. It's still a little bit of an elite concept in terms of the gentleman farmers and the educated farmers are talking about it. But अगर grassroots level पे, जैसे I think sir बात कर रहे थे कि वो change अगर लाना है, तो what are the basic things we need to educate them? I know you said education is important, but what are we, how do you make it seem like a profitable initiative for someone to make that change? Because as of now, the GMO seeds or, these are cheaper ways, higher yield, market में जाता है, roti kapda makan is what everyone's thinking. Like for a poor farmer, that becomes the priority. And if I tell him you are to think 50 years down the line, that doesn't, so how do we break it down for the grassroots levels, and what is that education we need to give? पहली बात है फार्मर्स को, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं मैं उसको बहुत सारा आंसर दे दूंगी. फार्मर्स लोग पुअर नहीं होते हैं और नहीं हैं, और ये कहा जाता है कि फार्मर्स आर पुअर करके, ठीक है. फार्मर्स शुड बी द रिचेस्ट पीपल. अभी आप जितना भी इन्वेस्टमेंट या जो भी मार्केट आज चल रहा है करोगे ना, तो जो भी इन्वेस्टमेंट उसके लिए कुछ टाइम वेट करना होता है, एंड वेट करने के बाद वो फंड्स आपके आएंगे नहीं आएंगे गारंटी नहीं है. जो भी शेयर्स है जो भी है, नथिंग कैन compete लाइक एक बीज डाला और आपको 100 बीज आया, ये कोई भी शेयर मार्केट आपको नहीं दे सकता है. सो फर्स्ट थिंग इज़ फार्मर्स को पुअर नहीं बोलना है, और वो हो नहीं सकते. दे आर द रिचेस्ट पीपल. ये हमने उनका बीज को नष्ट कर दिया है, उनका सीड को ही लेके जीएमओ प्रमोट किया ना, तो सीड के सीड नहीं आते हैं. तो एवरी ईयर दे हैव टू बाई सीड फ्रॉम कॉरपोरेशन एंड दैट सीड इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आवर नेटिव. तो उनको सीड से, सॉइल टू सीड इज़ माई प्रोग्राम नेम. पहला सॉइल बताते हैं कि कैसा होना चाहिए, तो बात ख़त्म, उनको प्रॉफिटेबल वहीं आ जाएगा. दूसरा, अपना सीड बचाना है तक का गाइडेंस दे दिया, सॉइल टू सीड का गाइडेंस दे दिया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. एंड थर्ड बात, कैसे करेंगे? तो आप सब लोग हो कहीं पे भी, कोई भी विलेज में, अगर आप चाहते हो, जहाँ चाह है वहाँ राह है ना, कहीं भी हम कुछ कर सकते हैं. तो आप कोई भी विलेज दिखाइए, मैं ट्रेन करूँगी. लेकिन इतना ही है कि आपके साथ अगर 10 लोग आ रहे हैं तो विलेज से भी एक 20 लोग आएंगे. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आई वर्कड इन वन
इंडस्ट्रियल चिमनी बहुत बड़ा बनता है, उसका एक इंडस्ट्री में वह काम किया। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कैन गो हैंड इन हैंड। तो वहाँ जब वर्कशॉप रखा था, सिटी से 30 लोग आए थे, सब मर्सिडीज बेंस में आए थे। दे आराम से कैन अफोर्ड माई फीस, वो लोग आके क्लास किए। बट मेरा एक ही कंडीशन था कि आप गांव से 30 पीपल को लाओगे, राइट? उन्होंने गांव से 30 फार्मर्स लेके आए। 30 फार्मर्स में एक 5 का एक्सेप्टेंस एंड कंफर्मेशन था कि आई विल कंटिन्यू, बाकी लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं था। तो वो 5 लोग आज उस फैक्ट्री के पेरोल में हैं, उनको यूनिफॉर्म के साथ, पंचिंग के साथ वो लोग टाइम से काम करते हैं, उनका PF, ESIC एंड एवरीथिंग इज़ टेकन केयर। तो इवन इन द CSR ऑल्सो, अगर कॉरपोरेट वाले 10 लोग आ रहे हैं, मैं बोलूँगी कि स्कूल से 10 बच्चे उठा के लाओ, उनको मैं ट्रेन करूँगी। जब दोनों मिल के सीखेंगे, इनका भी ईगो बस्ट होगा, उनको भी लगेगा कि हम ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं। एंड एनी टाइम बोथ आर रेडी फॉर वॉलंटियरिंग फॉर ईच अदर। तभी हम साथ में एक कम्युनिटी बनाएंगे। अगर चेंज लाना है तो दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस एंड कोशिश। पहला चीज़, अगर हम बीमार भी हैं तो हमको एक्सेप्ट करना है कि हमको दवाई चाहिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, या फर्स्ट आई हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? तो ये एक्सेप्टेंस जब के साथ, जब हम कन्विक्शन के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा से कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो भी पूछ सकते हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, तो पर्माकल्चर का डिज़ाइन ही बताता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मैंने बताया ना, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये बीज कैसे, बम्बल बी एंड बी कैसे जाते हैं, जूम करके ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं ना, उनका मूवमेंट ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, जिगजैग 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 रहता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे फ्लावर लगाया, यहाँ पे कुछ लगाया, या कॉलीफ्लावर लगा, कुछ भी मिक्स करके लगा दो, वो जब पॉलिनेट होगा तो द बेस्ट इज़ आपका क्रॉप बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छा हार्वेस्ट के साथ आपका सीड्स बनेंगे एंड आपको अनकंडीशनली हनी मिलेगा, और दैट विल बी वेरी 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 स्वीट हनी। બાય ધ વે અત્યારે બીઝ મરી રહી છે, એના બે મેજર રીઝનમાં એક જ છે મોનોકલ્ચર અને પેસ્ટિસાઇડ. ક્લાઇમેટ ચેન્જ તો કેવું છે, આજકાલ બધા બોલી રહ્યા છે. હવે કોઈને શું છે, મેં એમને ક્લાઇમેટ ચેન્જ કીધું તો મને કીધું કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ તો સારું છે. ક્લાઇમેટ ચેન્જ એટલે શું કે ઋતુ ચક્ર જે બદલાય, ઋતુ બદલાય તો એને ક્લાઇમેટ, તો એ તો આપણા માટે સારું છે, રાઈટ? કે ભાઈ શિયાળામાંથી પછી ઉનાળો આવે અને ઉનાળામાંથી ચોમાસું આવે, એવી રીતે તો એ સારું છે. પણ આપણે ક્લાઇમેટ ચેન્જને બહુ નેગેટિવ કરી દીધું છે અને કોઈ સમજવા નથી માગતું. પણ અત્યારે તમે સસ્ટેનેબિલિટી બોલો કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ બોલો એટલે તમે થોડા કૂલ લાગો છો, અને તમે પેલું ઇન્ટેલેક્ટ કહેવાય ને, એટલે આજે બધાને મજા આવે કે ઓકે આવો બહુ હોશિયાર છે અને બે ચાર ચોપડી વધારે વાંચી છે. સો હા, કૃપાલી મેમ અહીંયા છે. તો કૃપાલી મેમ, તમને શું લાગે છે આપણે છોકરાઓને, બાય ધ વે કૃપાલી મેમ AGSમાં ટીચર છે અને અમે AGSમાં જે જઈએ છીએ શીખવાડવા છોકરાઓને, તો એ કૃપાલી મેમના હિસાબે. અને તમને એવું લાગે છે આપણે છોકરાઓને આવું કંઈક સરસ વર્કશોપ કરાવી શકીએ? Actually, I was thinking of that only. Yeah. So it is going to help children to understand what is the basic of, agriculture, and it is future generations are kids. So if they are going to understand this, then probably they are going to implement it. So we would love to, it is call ma'am, invite ma'am at our school, and it is like we would be, it is like happy to host you over there. Definitely, definitely, yeah. અને પાછળ મારા બે ફ્રેન્ડ્સ બેઠા છે. તમારે कोई सवाल है? कारण કે તમે બંને भी बहुत सरस काम કરી રહ્યા છો एग्रीकल्चर में. मैम, उन्होंने बहुत अच्छा अपने एकदम ख़राब ज़मीन ले ली अपना गोडाउन बनाने के लिए, और फिर उनको एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया और अभी वो पूरा खेती कर रहे हैं. वहाँ पे उन्होंने पॉन्ड बना दिया, इकोसिस्टम बना दिया है, सब कुछ कर लिया है. છે ભાઈ તમારો કોઈ સવાલ? We are talking about soil, we are talking about native seeds, but first important thing is we get sunlight for free, but how to harvest water in our piece of land, and what maintenance should be taken care so that the topsoil should not wash away. So that is my question.
Yeah, for that only the main masala of the permaculture is a design science. तो इसमें डिज़ाइन जैसे आते मैंने बोला ना, हम मैपिंग करते हैं, इसका डिज़ाइन बनाते हैं. तो कहाँ पहले ही बताया ना, कहाँ सॉइल एरोशन हो रहा है, कैसे स्टॉप करना है, क्या क्या प्लांटेशन करना है. तो पानी जो फेंस इसलिए नहीं करते हैं कि हम पानी, अगर आपने 3 फीट गड्ढा करके फाउंडेशन करके ये लगा दिया फेंस कंक्रीट का, तो बाहर का पानी अंदर नहीं आएगा. आपका लैंड कितना एरिया है? 1 acre. Is it fenced? No fence. So पानी का नेचर क्या है? बहना. एंड सबसे बड़ा स्टोरेज ऑफ वाटर कहाँ है? हमारा जो जितना स्काई है उतना हमारा नीचे टैंक है, समझो. बस समझो कि बहुत बड़ा टंकी है जो धरती है. पूरा धरती में पानी है, अंदर है और साफ है. और पानी का ट्रैवलिंग है 3 फीट से नीचे वाटर ट्रैवल्स 3 फीट से. तभी तो आप जैसे जैसे वन ऑफ द प्रिंसिपल इज स्टोर वाटर एट द हाईएस्ट लेवल. हम लोग हाईएस्ट लेवल में जब पानी को स्टोर करते हैं, नेचुरली रोकते हैं चैनल चेक डैम बना के, तो वो अंदर अंदर से ट्रैवल करके कहीं एक जगह में वो फाउंटेन होके आ जाती है. अब वाटरफॉल सब कैसे देखते हो, पहाड़ों में झरना, सब पानी पहाड़ों में सबसे ज़्यादा होती, फूट के निकलती है नीचे से प्रेशर. तो पानी सब जगह है, आपको वो डिज़ाइन बनाना है और उस डिज़ाइन के हिसाब से आपको पानी स्टोरेज रखना है. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एंड साथ में प्लांटेशन ज़रूर करना है. तो क्या होगा ना, जहाँ पॉन्ड बनाओगे, जैसे हम डेट पाम हुआ और आइस एप्पल ज़रूर लगाना. हम लोग छोड़ दिए हैं आइस एप्पल लगाना. एप्पल मतलब सबको वही कश्मीर वाला एप्पल पता है ना? हाँ, ताड़. हाँ, एप्पल मतलब सब सिर्फ कश्मीर से जो आ रही है एप्पल, उसी को समझते. ए फॉर एप्पल जो सिखाते हैं. एक्चुअल एप्पल 20 टाइप के होते हैं जिसमें सेम न्यूट्रिशन, इसलिए एप्पल बोलते हैं. आइस एप्पल, रोज़ एप्पल, जावा एप्पल, कस्टर्ड एप्पल. कस्टर्ड एप्पल में सीताफल, रामफल, लक्ष्मण फल, हनुमान फल 4 है. और ये लक्ष्मण फल इज़ बेस्ट फॉर कैंसर. इवन 1 फ्रूट इज़ इक्वल टू 2 कीमोथेरेपी. आप एक फ्रूट खाओगे ना, एक कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट? तो ऐसे सब हम अपना जो प्लांट्स है वो सब लगाना है. इसको हम ना क्यों प्रॉफिटेबल बोलते हैं ना, सरप्लस प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि हम फूड फॉरेस्ट बनाते हैं, फ्रूट फॉरेस्ट बनाते हैं. गाय है तो फॉडर फॉरेस्ट बनाते हैं. अर्लियर देयर वाज फॉरेस्ट and we cut the forest and did agriculture. And now in this situation we are creating forest and growing food. तो क्या हुआ, हम वापस जा रहे हैं ना. हमको फॉरेस्ट बनाना है, फूड करना है. फूड में ऐसा नहीं कि हमको टिम्बर चाहिए, ठीक है टिम्बर लगाओ, अच्छा है, बट वो कहाँ लगाना है, फॉरेस्ट कहाँ बनाना अपना प्रॉपर्टी में. फिर अपना शेल्टर कहाँ रहेगा, शेल्टर से कितना पास में किचन गार्डन है, और अपाई को हो रहा है किचन गार्डन कितने पास में है. और बैठ जाओ, बेस्ट है. किचन गार्डन से हमारा सॉइल प्रिपरेशन का जगह कहाँ है, आइडेंटिफाई करना. ये भी डिज़ाइंस में आती है. आप पूछे ना 1 acre, यू कैन डिज़ाइन वेरी ब्यूटीफुली. आपको सिर्फ जोनिंग बोलते हैं इसको. आपका कैटल्स कहाँ रहेंगे, कैटल्स का वेस्ट बाहर नहीं जाना है या फिर घर के अंदर नहीं आना, उस हिसाब से प्लान करना है. आपके हर्ब्स कहाँ रहेंगे, आपके पेरिनियल्स जो कहाँ रहेंगे, पेरिनियल्स. एंड एले क्रॉप बोलते हैं, जो आपको दाल चावल जो भी लगाना, एले क्रॉप में लगाना है. कुछ कॉन्टोर्स आएंगे जो पानी को स्लो डाउन करेंगे. तो कॉन्टोर डिज़ाइन में कुछ गार्डन रहेगा जिसमें कि आप क्या क्या लगाओगे. तो पर्माकल्चर एक डिज़ाइन साइंस है जो बहुत आपको मल्टीपल वे से प्रॉफिट देगा. और आपको ये भी सोच के करना है कि आपका ज़रूरत क्या है. इसको बहुत सुंदर से एक बताते हैं कि लैंड स्पेसिफिक, क्लाइंट स्पेसिफिक, क्लाइमेट स्पेसिफिक. आपका लैंड आपको क्या दे सकती है, आपका
क्लाइमेट में आपको क्या आ सकता है और आपका खुद का ज़रूरत क्या है, तो इस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। मुझे बहुत पसंद है मैं सोपनेट लगाऊं, शिकाकाई लगाऊं ताकि मेरा शैम्पू वगैरह रुक जाए, कुछ एंजाइम्स बनाऊं जिसमें मेरा फ्लोर क्लीनिंग आ जाए। ये क्यों सस्टेनेबल बोलते हैं पर्माकल्चर को, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल होलिस्टिक क्यों बोलते हैं? होलिस्टिक मतलब हमारा मिट्टी अच्छा है, उसका साथ में उसके रूट्स जितने भी अर्थवर्म्स हुए, फंगाई हुए, बैक्टीरिया हुए, ये सब अच्छा है तो प्लांट्स अच्छे आएंगे, प्लांट्स अच्छे हैं तो हमारा पानी अच्छा रहेगा, पानी अच्छा है तो लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा। ये एक चेन है। अगर हम सॉइल डिप्लीट कर दिया तो प्लांट्स नहीं आएंगे एंड एवरीथिंग इज़ ड्रॉप नाउ। तो ये रिवर्स आने के लिए हम अपने हिसाब से देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए 1 एकड़ में, मैं क्या क्या फ्रूट्स खाती हूँ, मुझे अनार चाहिए, जावा एप्पल चाहिए, मुझे अपना यू लिस्ट आउट व्हाट आर द थिंग यू आर यूजिंग फॉर द डे टू डे लाइफ एंड व्हाट यू नीड फॉर योर फ्लावर्स हो, जो भी हो उसके हिसाब से प्लांटेशन कीजिए। बट टिम्बर भी रहेंगे, ये अपना डेट पाम एंड ताड़ भी रहेगा, वो सब विंड ब्रेकर का काम करते हैं। ठीक है, वो कहाँ रहना है, कहाँ लगाना है, दैट इज़ द मेन मसाला ऑफ द डिज़ाइन, दैट विंटर सन एंड समर सन इज़ डिफरेंट, तो उस हिसाब से प्लांटेशन होती है। हाँ, ઈલાબેન કેમ છો? તમારે કંઈ પૂછવું છે? સાંભળી રહ્યા। उनका बहुत अच्छा फार्म है अहमदाबाद के नज़दीक, और जैसे आपने काम किया ना, शी यूज़ टू वर्क एट हर फार्म, खुद से एक एक पेड़ उन्होंने खुद लगाया है। आज सभी पेड़ जवान हो गए और वो थोड़े से ओल्ड हो गए हैं। और जवान हो रहे और हैं। जवान हो गए। So, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते Yes, पूर्णा, हैं, क्योंकि तारा के मैं ही बात question कर रही हूँ ना, आप लोग भी बताइए, आप इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं ना। Hi, so I have a question in two parts. While all we are talking about here is creating the supply of the ecosystem and sustenance of the ecosystem, but the way I understand, and we are in Gujarat where people just talk business, so we also have to create demand. The kind of clients that I deal with often come to me and say, oh, healthy food is expensive, oh, taking care of nutrition is expensive. These are the same people who don't mind spending thousands and lakhs of rupees for alcohol, but they have issues spending it for healthier food. So one, how to influence them or push them to create the demand for the right kind of food so that eventually farmers and the whole ecosystem starts going towards the supply of it. And secondly, how can they also start doing this at scale so that the cost or the affordability in a point, because India is a vast socio-economic country that way, so the affordability also comes to a level where a layman does not have to think, because जो majority clients जो जॉब करते हैं वो लोग यही बोलते हैं, यार वड़ा पाव 10 रुपये में मिलता है, मेरे को सैलेड का बोल महंगा पड़ता है, so I'll fill my stomach with that. So how to create that balance in the whole ecosystem? सस्ता और अच्छा। एक्चुअली ना हम लोग जब ये जो हम आए हैं लेवल पे, ये जो जर्नी है हमारा ये 50 साल का, ये इन्फ्लेशन हाइप सब किया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली जो हम नेचुरल जो उगाएंगे और नेचुरल जो करेंगे उसमें हमारा कॉस्ट बहुत कम होना है, कॉस्ट को कम हो जाएगा। हमारा मेजर पार्ट ऑफ जो हाइप है, कॉस्टिंग का जो है लेबल है, वो कुछ लोगों के वजह से है। आई डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग, बिकॉज कुछ लोग इसको एक जब बिजनेस के रूप में देखते हैं, एक फार्मर का अंदाज में देखने, एक बिजनेस के अंदाज में देखने में दो अलग बात है। फार्मर का क्या है, मेरा खुद का लैंड है, मैं खुद मेहनत करता हूँ और मैं केमिकल नहीं डाल रहा हूँ, मेरे को 20 रुपया मिल जाएगा, मुझे काफ़ी है। बट इसको जो मार्केट तक पहुँचाता है या फिर ऑर्गेनिक ब्रांड में जब बिकता है तो वो ब्रांड का नाम बनाने में काफ़ी खर्चा होता है, उनका वेबसाइट हुआ, मार्केटिंग हुआ, टीम हुआ, तो ये जो ओवरहेड कॉस्ट उस किसान के सर पे आ जाता है। एंड ये एक मिथ है कि ऑर्गेनिक का मतलब कॉस्टली है। मुझे एक कुंदरू भी उगाना है तो मुझे कोई एफर्ट नहीं है, मैंने एक छोटा सा स्टिक लगाया और वो अपने उसको कुछ भी नहीं करना है,
एंड मेरे हिसाब से मेरे जो स्टाइल से जब मल्चिंग करेंगे, कवर क्रॉप लगाएंगे, मल्टीपल करेंगे, तो मुझे उसके पास कुछ करने के लिए नहीं जाना, मुझे सिर्फ हार्वेस्टिंग का टाइम लगता है। एंड आप लोग सब जाओगे तो भी हार्वेस्टिंग के लिए टाइम लगेगा, आपको काम करने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पे, आप सिर्फ एंजॉय करो और हार्वेस्ट करो। आप गैप समझ रहे हो कि मार्केट, फार्म से मार्केट तक जो ऑर्गेनिक का लेबल आता है उसमें कॉस्ट जाता है। एक्चुअली अगर कम्युनिटी बन जाता है तो एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, बट फार्मर्स के प्राइस से थोड़ा और प्राइस आप लोग, यही ब्रिज चाहिए। जब जैसे कि हम लोग कल गए यहाँ से, इतना दूर कहाँ गए थे, मातर गए थे, तो ऑन द वे वहाँ से काफ़ी सारी सब्जी आ रही थी, तो उन्होंने प्राइवेट टेम्पो में डाले, फिर मंडी में आया, मंडी से सुपरमार्केट आया, सुपरमार्केट से फिर घर गया, फिर फ्रिज में रखे, फिर 10 दिन रख के खाया। तो इसमें ये जो ट्रैवल है सब्जियों का, इसमें शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, क्योंकि आप कुछ तो स्प्रे करोगे तभी वो 2 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। फिर डिपार्टमेंट स्टोर में कुछ तो करोगे कि ठंडा रहेगा अच्छा से, रजाई वजाई ओढ़ के, राइट। तो उसका शेल्फ लाइफ जब बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर जाके भी वो शेल्फ लाइफ बढ़ा ही रहता है, वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। तो हमको जितना बीमारी, गैस प्रॉब्लम, अनडाइजेशन प्रॉब्लम जो भी है, बिकॉज ऑफ द फूड विच इज़, इवन आप जो भी लाते हो, आज फ्रेश उगाया, फ्रेश खाया में एंड मार्केट से लाके खाया में बहुत डिफरेंस रहता है, राइट। तो इट्स जस्ट ए हाइप दैट, मैं इसलिए बोलती हूँ बार बार कि ऑर्गेनिक इज़ नॉट ए प्रोडक्ट और प्रोड्यूस, इट्स ए वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ कल्टिवेशन, नेचुरल वे ऑफ डूइंग इट। તો इसमें एक्चुअली મેં પણ કંઈક એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે કે ખેડૂતો જે ટામેટા છે ને એ ₹2.25 એપીએમસીમાં વેચે છે, આપણા સુધી પહોંચતા પહોંચતા 40 થઈ જાય છે। અને આમાં આપણો બી થોડો વાંક છે કે આપણને છે ને આમ કેળું આમ ચોખ્ખું જોઈએ છે, નો લાઈક ઓ વાવ મોટું છે, ચોખ્ખું છે। સો એટલે આપણે, એટલે પેલા લોકો શું કરે છે, હમણાં જ હું આદિવાસીઓને મળ્યો અહીંયા છોટાઉદેપુરમાં, તો ત્યાં બહુ બધા કેળા છે, રાઈટ। તો એ લોકો શું કરે છે, કેળા હાર્વેસ્ટ થયા, એને કેમિકલમાં બોળ્યું અને એને પેલામાં નાખી દીધું, એટલે 4 કલાક અહીંયા પહોંચતા આવે ત્યાં સુધી એકદમ પરફેક્ટ પીળું કેળું તમને ખાવા મળે, ને તમે જ્યારે ખાઓ ને એટલે વાહ શું કેળું છે। એટલે હવે એવું છે કે ડાઘો છે તો તમે ખાઓ, કે એના પર કોઈ કંઈ બી બેઠું છે તો તમે ખાઓ। પહેલાં આપણે એવું છોડી દેતા હતા, રાઈટ, કે આ ના ખાવું જોઈએ, પણ હવે ઊંધું થઈ ગયું છે, એટલા બધા પેસ્ટિસાઇડ નાખે છે કે એના પર કોઈ બેસતું જ નથી, એટલે આપણને એવું લાગે છે વાહ શું ચોખ્ખું છે। સો એટલે અમે એ પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે એક નાની કમ્યુનિટી બનાવીએ, એને અમે પ્રોજેક્ટ એડોપ્ટ ક્વીન કમ્યુનિટી કહીએ છીએ। એક સેકન્ડ આવું, અમારે આ બોલવું જરૂરી છે અત્યારે, ઓકે। સો અમે પ્રોજેક્ટ એડોપ્ટ ક્વીન કમ્યુનિટી અમે એને કહીએ છીએ, જેમાં અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે આપણે, જેમ મૃણાલે હમણાં સવાલ પૂછ્યો કે આપણે એમને સાચા ભાવમાં સારી વસ્તુ કેવી રીતે પહોંચાડીએ, જેમાં ખેડૂતને 2.5 નહીં 10 રૂપિયા મળે અને આપણને 40ની જગ્યાએ 25 રૂપિયામાં પડે, તો એ એકચ્યુઅલી પોસિબલ છે। અને અહીંયા ઘણા બધા એવા સારા મિત્રો છે જેમણે એમની જમીન ઓફર કરી છે કે, અને એમાં હોપફુલી વિજયલક્ષ્મી મેમ એમાં કામ કરીને એને બહુ જ સરસ જમીનમાં કન્વર્ટ કરશે, અને આપણે જેન્યુનલી એક નાની કમ્યુનિટી બનાવીને આ વસ્તુ સ્ટાર્ટ કરી શકીશું। યસ પ્લીઝ, તમારો સવાલ હતો। Hi. That was a nice presentation and a nice discussion. Thank you for that. My question is that from the entire talk, I started to realize that we have to embrace what is indigenous, right, to our context, etc. So my question is, where do you source these indigenous seeds and how do you propagate these indigenous species? Because they're not available in regular markets and things like that. So how did you start the seed for this initiative? अभी चाहिए? Yes, yes. લઈને આવ્યા છે। मैं हमेशा मेरे टाइम पे ना एक वैनिटी केस हुआ करता था, VIP का मेकअप किट, यू रिमेंबर? इट वाज गिवन इन माय वेडिंग and that makeup, I never use any makeup, so I used it for my kids. મેડમની છે ને દૂરથી ખાલી આ એ જ ચમકતી હતી, હમણાં ગયો હતો ને તો દેખાતા નહોતા, પણ આ ચમકતું તમે આ રહ્યા।
तो बच्चों का जब ट्रैवल करते ना तो उसको किट जैसा यूज़ किया था. देन सब बच्चे बड़े हो गए तो वो किट मेरे आँख में बहुत खटक रहा था कि पढ़े 30 साल से पढ़े हैं. तो लास्ट 10 years मुझे बहुत दिक्कत होती है जब ट्रैवल करते हैं तो प्लांट्स नहीं लेना, सीड्स नहीं लेना. फ्लाइट में बहुत लड़ाई हो जाता है मेरे सबसे. तो मैं वो जो मेरा वैनिटी केस है उसमें पूरा बॉटल्स में सीड रखती हूँ और पैकेट्स में पूरा ठूस के. वैनिटी केस में ऊपर का जो ट्रे है अलग अलग पार्टीशन, उसमें भी अलग अलग सीड्स है. और मैं बहुत स्टाइल से जाती हूँ कहीं भी जाने से कि मैं मेकअप किट लेके जा रही हूँ. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई डिड नॉट ट्रैवल विथ माई सीड बैंक. एंड या फ्यू लॉन्ग पर्पल बीन्स का सीड मेरे पास है, मैं दे दूँगी. Generally when we create a community, whatever I have seed I will definitely share with you, but with a promise that you will definitely save and some return to me or some return to community. It should continue. That's amazing. Build your own seed. तो soil to seed का प्रोग्राम में आपको जो भी लोकल है, जो भी इंडिजिनियस है और डाइवर्सिटी, जैसे कि काफ़ी कुछ तमिलनाडु का सीड्स है ना, आपको अच्छा लगेगा. वाइट बैंगन, हाँ, आई विल शेयर डेफिनेटली. Okay, thank you. It's a wonderful discussion going on. I think since you mentioned about the seed, I know of many tribal community where they used to have a lot of seed banks, old seed bank. I think that kind of the practice can be promoted. जैसे आपने बताया पुराने सब चीज़ हो रहे थे. Now my concern and the question is that all this knowledge is now only limited to this classroom or this. How can we really enhance it by way of two things? I think one is research and one is the education, spreading it through different medias. So what different mode and media we can use to reach to more and more people in terms of education, in terms of research? Because ये सब जो indigenous knowledge है ना, वो लोग believe नहीं करते because there is no data and research available. So these are the areas when I think a lot of things can be done. So can you throw some light on that? Sure, that's very important. कि अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है. So जब भी हम ट्रेलर दिखाते हैं उसमें थोड़ा ही बात होता है. एक्चुअल पिक्चर है जब हमको प्रोड्यूस करके रिलीज़ करना है, तो कहीं ना कहीं एक मॉडल बनाएंगे जहाँ की जब तक हम देखते नहीं हैं डिफरेंस तब तक बिलीफ नहीं आती है, राइट? तो यस, अर्बन में काफ़ी चैलेंजेस होंगे, तो ये सब भी हम उसी जगह में सीखेंगे, अर्बन रूरल मिक्स करके एक जगह में. हाँ, અત્યારે સર અમે અમદાવાદમાં 4 સેન્ટર બનાવી રહ્યા છે કે જ્યાં આવી પ્રેક્ટિસીસ થશે, ત્યાં આપણે સાચે એક્સપેરિમેન્ટ કરી અને જોઈ શકીશું શું ચેન્જીસ આવ્યા શું નહીં આવ્યા. એટલે આપણી પાસે તમને ખબર છે ટેકનોલોજી પણ છે, તો આપણે એકચ્યુઅલ ડેટા ક્રિએટ કરી રહ્યા છે કે આનાથી એકચ્યુઅલી શું થયું, રાઈટ? અને તમને ખબર છે આપણા મધુકાંત સર છે અહીંયા, એ ટેકનોલોજીના માસ્ટર છે, અને હવે આપણી પાસે સોઇલનો ડેટા હશે, ક્રોપનો ડેટા હશે, આપણે બીજનો ડેટા તો છે જ. સો આપણી પાસે હવે આખા ઇન્ડિયાનો એક જેન્યુન ડેટા, અને હવે આપણી પાસે એવી ડિવાઇસ પણ છે જે તમારા સીડને સ્કેન કરીને કહી દેશે કે આ ફર્ટાઇલ છે કે આ જર્મિનેટ થશે કે નહીં થાય. એટલે સર અત્યારે કે રિસર્ચ થ્રુ કે પબ્લિકેશન થ્રુ કે લિમિટેશનમાં રહેશે અને હાઉ ડુ વી મલ્ટીપ્લાય? અત્યારે અમે આને પ્રૂવ કરવા પર વધારે મહેનત કરી રહ્યા છે અને નાની કમ્યુનિટી થ્રુ ધીરે ધીરે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. અત્યારે તાત્કાલિક તમને કહું તો ખાલી ઇન્સ્ટાગ્રામ છે. ભવિષ્યમાં મારી ગણતરી છે આખા અમદાવાદના ઇકોસિસ્ટમમાં એક ચક્કરડું મારા નામનું હું ફેરવી કાઢીશ. યસ યસ. હિન્દી કમ્પલસરીના બદલે એગ્રીકલ્ચર કમ્પલસરી. ના ચોક્કસ આપણે આપણી સ્કૂલ ખોલી દઈશું ભવિષ્યમાં. નહીં, છોકરું બહાર નીકળશે શીખી જશે. नहीं, स्कूल्स लेवल में ना EVS सब्जेक्ट ऑलरेडी है, ऑलरेडी नहीं. उसमें अभी हमको क्या करना है ना कि हमको सिर्फ हमको उनको थोड़ा सा एक मॉडल बना के उनको एक और चीज़ को पढ़ाना. जैसे कि हर साल तो कुछ ना कुछ, पहले 3-4 बुक होते थे, आज कितना सब्जेक्ट्स बन गए हैं, तो इसको भी एक सब्जेक्ट में ला के प्रैक्टिकल में लाना है.
आज ये सेशन में इसलिए है कि हम लोग तो बस चर्चा कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, बट हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तब जब आप देखोगे ये बिफोर एंड आफ्टर, तो आपको सच में पता चलेगा कि सब मिलके करेंगे तो व्हाट ए वंडर इट विल बी, रियली abundance of water. So ultimately the goal is to make everyone a farmer. Everyone. Yes. So why farmer community different? I think that is the ઇન્ફેક્શન જો હે ના સબકો ફેલાના હે. હા हाँ આપણે એમાં હેલ્ધી કોમ્પિટિશન કરીશું, પેલો કે હવે મારું સારું એ વધારે સારું રહેશે રાધર દેન સસ્તું કરતા और सबके पास आप लोग सब लोग एक्सपर्ट्स हो ना. आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू मैनी थिंग्स, राइट. आपका भी एक्सपीरियंस जो मेरे लिए बहुत वैल्यू है, बिकॉज ये आपका लोकल में आप लोग कैसे खाते हो, क्या क्या बनाते हो, जैसे है ना, वैसे लोकल में हम कितने एक्सपर्ट्स हैं ना, दैट आई कैन ऑल्सो, इट्स लाइक बार्टर सिस्टम, हम शेयर करेंगे. सीड जैसे पूछा ना, मैं डेफिनेटली सीड दे, हम लोग सीड नहीं बेचते. काफ़ी लोग बोलते सीड बेचो. मेरे घर में ना, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोग को स्टोरी. एक दिन मुझे ना, आई वॉज वेरी टायर्ड ट्रैवलिंग हियर देयर चेन्नई प्रोजेक्ट में, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं होटल में सो रही थी और सुबह मेरे को लगा कि मैं मर गई हूँ. सो इट वॉज ए ड्रीम कि आई एम डेड एंड आफ्टर माई डेथ पीपल आर सर्चिंग मैनी थिंग्स फ्रॉम मी. तो सब लोग जहाँ जहाँ मैं, इवन माई कपड़े झाड़ रहे तो बीज गिर रहे हैं, मैं जहाँ जो भी निकाल रहे सिर्फ सीड गिर रहे हैं. और आई वॉज शेयरिंग दिस टू माई क्लाइंट एंड सच में मेरे घर में ना शोकेस में भी सीड्स हैं, अलमारी में भी सीड है, बालकनी में भी सीड है, लाइक घर पूरा है ना एक म्यूज़ियम जैसा है. और सीड सीड सीड. तो घर में जो गेस्ट आते हैं, मम्मी भी अभी है, बोलते हर जगह सिर्फ तुम्हारा सीड ही दिख रहा है. मतलब यही है मेरे पास आज जो है ये नॉलेज एंड ये सीड है. तो दैट ड्रीम वॉज रियली मुझे हिला दिया कि सच में मैं नहीं हूँ, मैं समझ रही हूँ कि मैं नहीं हूँ, बट लोग क्या ढूंढ रहे हैं मुझसे पता नहीं, बट सबको सीड मिल रहा है, झाड़ रहे हैं, मेरे कपड़े से भी गिर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं सीड. तो दैट वॉज रियली પરફેક્ટ. સો યસ આલાપભાઈ, યસ બે સવાલ છે. આલાપ પહેલા આલાપભાઈને આપો પછી हेलो मैम. मीत भाई भाई, आलापभाईना घर में जंगल, इनके घर में जंगल बना हुआ है पूरा. अच्छा. मैंने एक्चुअली हमारे घर में से जो भी लोन थी वो निकाल के किचन गार्डन बना दिया है. अच्छा, एक 2-3 सवाल है. तो कि पर्माकल्चर में ट्रीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है. तो हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम बहुत सारे ट्रीज़ लगा सकें, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं. दूसरा है कि मीत भाई के आज બહુ સરસ ડિસ્કશન થયું છે અને મેમે કીધું આ ટ્રેલર છે. યસ. તો એ વધારે ડિટેલમાં જાણવું હોય કે પિક્ચર આગળ જોવું હોય તો આપણે ફ્રિકવન્ટલી આવું કંઈક સેશન ફરી રાખવાના છીએ? ના, ચોક્કસ. એના વિશે કંઈક અમે માતરમાં અને નાંદોલીમાં અત્યારે 2 જગ્યા 20-20 એકર છે, ત્યાં આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી દીધી છે. સો હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે લગભગ એકાદ મહિનામાં પાછા મળીશું અને આનું જે નેક્સ્ટ સેશન છે આગળ કેવી રીતે કરવાના છે, શું કરવાના છે, શું થઈ ચૂક્યું છે અને મેડમ આખું પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરે છે, શું કરે છે. સો આપણે એના પર કામ શરૂ કરી દીધું છે અને હોપફુલી 1 મહિનાની અંદર આપણે આના પર પાછું ચર્ચા કરીશું. ઝૂમ ઉપર કેવું કંઈક જે પણ હા કરી શકાય છે. એટલે હું અત્યારે તમારા બધાના નંબર છે મારી પાસે, તો હું બધાને કનેક્ટ કરીને ફ્યુચરમાં એક સરસ ગ્રુપ બનાવી અને જેને જેને ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો એમની સાથે આપણે આ કમ્યુનિટીમાં શેર ચોક્કસ કરીશું. અને આઈ થિંક આટલા સરસ બધા એક્સપર્ટ્સ કે જે ઇન્ટરેસ્ટેડ લોકો છે, તો એ આઈ થિંક શું કહેવાય ને, ગ્રુપ જેવું હોય કે મીન્સ જે વારંવાર કમ્યુનિકેટ કરી શકે, બીજા જોડે શેર કરી શકે. રાઈટ. તો એની ઉપર કંઈક ડેફિનેટલી આલાભાઈ આઈ વર્ક ઓન ઇટ અને હું તમને ચોક્કસ બને એટલું વહેલું જણાવીશ. અને આ બધા ફેમિલી જ છે, હું બધા નામથી ઓળખું છું. સો યા तो वांदो नहीं आया. सो मैम वो क्वेश्चन था कि ट्रीज के बारे में, ट्रीज कैसे ज़्यादा कर सकते हैं कम जगह में. जो आपने बताया था ना कार्तिक भाई को कि छोटे से ड्रम में रूट्स हैं, आ जाएंगे तो उग मुझे जानना है कि आपके पास कम जगह मतलब कितना कम? 40 by 20 या 30 ऐसा कुछ होगा. ओपन स्पेस है? Yes.
40x30 फीट। वो कम है? नहीं कम नहीं है, मतलब ट्रीज के लिए अगर, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स ग्रो करने हैं और फिर मैं ट्रीज भी लगाऊंगा तो उसके शेड में फिर वेजिटेबल्स सनलाइट के बिना ग्रो नहीं करेंगे ना। तो वो तो सब कैसे हैंडल नहीं, करें? हम लोग क्या करेंगे ना, पहले लिस्ट बनाएंगे कि आपको क्या ट्रीज चाहिए। अभी बताया ना कि आपका नीड क्या है, ठीक है। इसको ये सस्टेनेबल इसलिए कि पहला हमको अपना मैं सस्टेनेबल का पहले बताना चाहूँगी। हमारा जो भी खर्चा है, हम किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, आप वो लिस्ट बनाना, ठीक है। उस लिस्ट में आप अपना फूड के लिए कितना खर्चा कर रहे हो मेनली बनाना। उसमें फ्रूट्स का क्या है, वेजिटेबल का क्या है, ये सब अलग अलग लिस्ट बनाइए। अकॉर्डिंगली आपका एक कॉर्नर जो वेस्ट साइड में है, वेस्ट इज़ ऑलवेज फॉर द माने ज़्यादा सनलाइट रहती है, तो ये डिज़ाइन में आती है। तो वैसा हम ये प्लानिंग में जगह देखने के बाद ही हम कर सकते हैं। आप लिस्ट बनाइए आपको क्या क्या ट्रीज चाहिए। और वेजिटेबल के लिए भी आपका एक तो स्पाइरल वर्टिकल है और ट्रेलिसेस है, हम मल्टी लेयर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। आप 30% जगह आप रखते हैं ना, 30-40 या 20-40 में 30% जगह उतना काफ़ी है आपका वेजिटेबल्स के लिए। और ट्रीज बड़ा होने के लिए जब तक टाइम लगेगा तब तक आप अपना दाल वगैरह भी, मूंग दाल वगैरह भी उगा सकते हो, तूर दाल उगा सकते हो, है ना। तब तक 2 साल तक आप अपना अदर पेरिनियल्स भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन है कंपेनियन प्लांटिंग के बारे में कुछ, या वेजिटेबल्स जो होते हैं। कंपेनियन प्लांटिंग, यस। सबको पता है ना, कुकुम्बर एंड टोमेटो हम सैलड इसमें सैंडविच में बहुत अच्छा से खाते हैं। एक्चुअली दे डोंट ग्रो टुगेदर। आप कुकुम्बर लगा के टोमेटो लगाओगे ना, कुकुम्बर सूख के बेचारा टोमेटो कुकुम्बर को मार डालेगा। दे डोंट ग्रो टुगेदर, सिंपल। और कंपेनियन में एक है कि क्रीपर्स जो बेल है ना, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो आप कहीं पे भी लगा दो तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। जैसे जो सपोज कुकुम्बर लगाया या जो भी लगाया, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। तो जितने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे उतने ज़्यादा आपके बीस, बटरफ्लाई, बम्बल बीज सब आएंगे। तो कंपेनियन उसमें से आपको पेस्ट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके साथ में कुछ रूट का लगा देना, जैसे कि भिंडी लगाया, मूली लगा दिया बगल में, तो आपका एक भिंडी अच्छा सॉइल बन गया तो 10 फीट तक जा सकता है। 1 भिंडी आप 30 हार्वेस्ट कर सकते हो। विथ दैट इज प्रॉफिटेबल, और विथ केमिकल 3 हार्वेस्ट किया प्रॉफिटेबल है। 30 इज प्रॉफिटेबल। सो लेट्स गो नेचुरल एंड मेक मोर प्रॉफिट। तो कंपेनियन में फ्लावर्स होना है, प्याज कुछ लगा सकते हो, स्ट्रॉन्ग स्मेल। एक और है चाइव्स, आप सुने हो चाइव्स? हाँ, सबको पता होगा चाइव्स, वेरी नाइस। चाइव्स लगाओगे तो आप कुछ भी लगा सकते हो, कंपेनियन हो गया। हाँ बताइए। परफेक्ट। लास्ट 2 क्वेश्चंस, 6:30 हो गए। તમે સવાલ પૂછતા હતા, રાઈટ? One suggestion would like to say that as per my experience, I am working with MNC and being a corporate environmental sustainability head. So one experience, I also belongs to the village. So like मैंने भी अपना time पे till my college used to help my father for the farming and different kind of vegetables at the Charotar area, whatever we are able to grow, kela, bela, everything we used to do that. And the same, the budding propagation that we had done at that age. And that is that insists me to choose this subject, environmental science. And being a corporate employee, I started to take that furthermore. तो मैंने एक टाइम पे डिसाइड किया कि मैं खुद का पहले बीज बैंक एक बनाऊँ। तो 1 साल आई टुक फॉर दैट
टू कलेक्ट द बीज, और मैंने अपना ही कैबिन में एक बीज बैंक बनाया. फिर मैंने मैसेज स्प्रेड करना स्टार्ट किया अमॉन्ग एम्प्लॉइज, एंड लाइक आई टोल्ड देम, जो भी आप इसमें डेबिट करो वो आप क्रेडिट करके जाओ विथ अनदर वेराइटी. And that working very fine. I would like to say that now I am having a good diversity in my beach bank, and the employees who are coming, those are very happy that they able to revise their childhood when at that age might be there with their grandparents. They might visited farmlands or those, so they are reviving that. Being a IT professional now, they are also enjoying reminding their childhood at the office area. We started to have a diverse this medicinal garden, variety of plant species, fruiting plants at the premises. They used to start their caring, and they also enjoy when flowering is come up, fruiting come up, how the other birds or bees are enjoying that part. So entire ecosystem they are able to visualize. Yeah. And nice. my message here too, Achha. we are thinking that we'll educate children at the school level. That is also very important, because we are in that subconscious mind we are putting that seeds. But when they are able to invest, we'll have to again remind them where to invest rather than this concrete jungle. Yeah. Why not we'll start to invest where we are already interested during our childhood. So we'll take a awareness session among the initial stage of their earning life. So that will definitely guide them to put towards this our originality. Thank you. That's the message. Thank you. Thank you આ બેને so much. સમરી That આપી was દીધી very આપણને nice. આની. हाँ, લાસ્ટ हाँ. સવાલ જ છે ને તમારો? થેન્ક યુ. आपका अभी कोई अहमदाबाद या गुजरात में कोई रनिंग प्रोजेक्ट होगा करंटली एट प्रेजेंट, इफ़ यू वांट टू सी? अभी शुरू करेंगे. अभी शुरू करें. हाँ. एंड सपोज अगर हमें कोई पर्माकल्चर फार्म डेवलप करना हो और उसमें आपका असिस्टेंट चाहिए, मतलब आपका रिक्वायरमेंट हेल्प चाहिए, तो वो हम आपको कैसे कांटेक्ट करें? या फिर PAQ कम्युनिटी ने મેસેજ કરવાનો તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં. યા विच कम्युनिटी? PAQ પ્રોજેક્ટ અડોપ્ટ ક્વીન. ઓકે. યા પ્રોજેક્ટ શું છે પૂરો આપણું શું છે હેન્ડલ? project.aq. project.aq. અડોપ્ટ ક્વીનનું AQ. PAQ. યા રાઈટ. અમે બી થોડું અમારું માર્કેટિંગ કરીએ ને. હવે કોઈ બાકી છે? पूरब को नंबर दे देने से ना, हाँ. you can keep in touch. हाँ. તમારે તમે આવો બેસો. उनको बैठाओ. नहीं नहीं. हाँ, अरे आप लोग गप मारे थे कि बोला नहीं होगा, हमारा जब सबको देर हो रही है. So namaste everyone. Myself Dr. Madhukant Patel, ex-ISRO scientist, by birth a farmer. So till I joined ISRO, I was full-time farmer and part-time student, and then I became scientist. So खेती थोड़ी दूर चली गई. But जो like पाठक साहब told कि भी how to grow this, पूरा सोसाइटी में फैलाए कैसे, जैसे मैंने का वायरस फैलाओ. तो मैं एक एग्जांपल दूंगा जो मेरा खुद का जो मैंने अनुभव किया है कि फॉर एग्जाम्पल इसरो डॉक्टर साराभाई, जिससे 30 साल की उम्र में कुछ काम शुरू किया होगा और लेस देन 50 ईयर्स में ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड. 20 साल में ही प्लांटेड सो मच कि 200 साल तक काम करते रह गए हम लोग स्पेस का, तब भी कम पड़ रहा है. सो अभी अमूल डेरिविनो अमूल पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा देश में अमूल के पार्लर है. तो अभी लेट्स कनेक्ट की भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड एंड अमूल दिस फूड फॉर हाफ ऑफ द वर्ल्ड. व्हाट इज द कनेक्ट? सो वट एवर पेन वी हैव, हाउ टू स्प्रेड दिस टू द सोसाइटी, हाउ टू बच्चों को ज्ञान कैसे दे, किताब में डालो उधर डालो, तो वो प्रॉब्लम वाला है. वाई डोंट वी टीच स्टूडेंट एट होम? वो भी जिम्मेदारी है अपनी, घर पे क्यों ना सिखाए? वाई स्कूल शुड डू इट फॉर एग्जाम्पल. सो व्हाट डॉक्टर साराभाई डॉक्टर कुरियन डिड कि इसरो का टेक्नोलॉजी एंड कैटल फार्मर का फार्मिंग दोनों को ब्लेंड किया. सो इसलिए इसरो डोनेटेड ए टेलीविजन ट्रांसमीटर टू पीज खेड़ा
and ISRO gave television to each panchayat and each dairy. And then they started broadcasting Ungon Hamari Bhuri, Kakari Daily, those kind of serial, which is meant for rural and farmers. And beautifully designed by ISRO, and every day they are giving serial. समझो आज कुछ भैंस को प्रॉब्लम हुआ आज, कल के एपिसोड में शाम को इसका इलाज आ जाएगा. That fast. 30-40 social researchers, they take the feedback of every episode, and next day it is blended into next day का serial में. तो कई साल तक चले वो serial. What we can do now in our contest, that first we make some model farms, जो जैसे 1 acre और ज़्यादा ज़मीन के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, या बंगलोज है. दूसरा we can create some 200 अपार्टमेंट, जिस मैडम के घर में पूरा गार्डन है, ऐसा 100-200 बनाए अहमदाबाद में हम सब मिल के घर में. एंड लेट पीपल स्टार्ट स्प्रेडिंग द वायरस. हर किसी को ताज़ा सब्जी चाहिए, हर किसी को सस्ता सब्जी चाहिए, तो ये तो घर में ही होगा, ताज़ा और सस्ता. तो ये फैलाने के लिए अपने पास पूरा टेक्नोलॉजी है. जैसे हम लोग हनी फार्मिंग में वी हैव डन द वंडरफुल टेक्नोलॉजी फॉर हनी फार्मिंग, जो डेटा मोबाइल में आता है सीधा कि हनी कैसे ग्रो रहा है, कितना शुद्ध है, माखी बीमार है, शुद्ध है, क्या है. 2 दिन पहले आई वेंट टू गुजरात बायोटेक मिशन, वहाँ पे सीड्स है, दे क्वालिफाई द सीड्स. सो वी यूज अवर टेक्नोलॉजी और दिखाए उस सीड स्कैन करके कि ये कितने अच्छे सीड है. 95% जर्मिनेशन वाला है, 80% क्या है, एंड देन वी कैन इवन सॉर्ट इट आउट. सबसे तो क्या कि भाई घर में तो वी पुट 20 सीड्स, तो 20 निकलने चाहिए, वरना 25 निकले तो दुखी होते हैं हम लोग कि भाई अभी पूरा साइकिल निकल गया. तो देर आर टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर ईच ऑफ दिस. So we blend the technology, knowledge of madam, effort of Meet and all those team. We blend it in a social media, in a monthly online meeting, sitting, कुछ भी करके share experience by some media कि हमने घर में डाला, इतना अच्छा हो रहा है, वो इतना आसान है. तो 3x3 फीट का 6x3 फीट का छोटा बनाया, पूरा घर हैप्पी है. अब 4 फैमिली को देते हैं 6x3 फीट में, तो हम सभी फैमिली को खुश कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस को. तो इसी कुछ ब्लेंड करें हम लोग टेक्नोलॉजी में. आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर एनी टेक्नोलॉजी वी वांट टू एक्चुअली टेक द डेटा फ्रॉम पीपल एंड सेंड इट टू द सोसाइटी. तो दिस मे बी द काइंड ऑफ कैटालिस्ट. ऑल ऑफ अस वी आर स्टेइंग लाइक लिविंग इन द सिटी, वी हैव सम नॉलेज ऑफ IT, सम नॉलेज ऑफ सीड, सम नॉलेज ऑफ XYZ, या स्कूलिंग टीचर वगैरह वगैरह. तो ये 100-200 मॉडल बनाना है, बाकी तो जनता पीछे पड़ जाएगी. वो वायरस फैलने में टाइम नहीं लगता है, अच्छा या बुरा. तो हम अच्छा वायरस बनाए हम लोग तो फैलेगा. तो उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रह सकता है, वेयर आई कैन हेल्प एंड माई टीम कैन हेल्प एंड वी कैन टेक इट टू फॉरवर्ड. सो सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, बट आई थॉट लेट मी ट्राई टू गिव फ्यू एग्जाम्पल वेयर नो वी हैव द पेन ऑफ हाउ टू स्केल इट. सो वी कैन स्केल लाइक दिस. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बहुत बढ़िया. थैंक यू से पहले मैं भी एक बात बोलूँगी. आप आ जाओ, आ जाओ, तुमको ही थैंक यू बोलना है. पूरब का एफर्ट एंड लास्ट मोमेंट सब कुछ भाग भाग के बेचारे ने किया सब कुछ, ठीक है. सो ये कैसा है ना कि एक छोटा सा ये है संस्कृत में, आनो भद्रः विषवो यन्तु विश्वतः, मतलब लेट द नॉलेज कम फ्रॉम ऑल साइड्स. तो ये नॉलेज जो है हम सबका टुगेदर है. आप लोग का भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं नया प्रोडक्ट लेके आई हूँ. सबका एक ही गोल है कि हाउ टू go back to our roots, how to come to our natural way of living. and इसमें हम अपना नॉलेज शेयर करेंगे, बाटर सिस्टम एंड सीड भी शेयर करेंगे, बाटर सिस्टम, ठीक है. जिसके पास सीड है हम भी देंगे, आप भी उगाना, फिर ऐसे ही सीड्स बांटेंगे, नॉलेज भी शेयर करेंगे, सब मिल के. ये ना एक आंदोलन जैसा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक जन ने ट्राई, हर कोई अलग अलग ट्राई कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, एक बाइंडिंग एंड नहीं हो पा रहा है साथ में.
तो हम इसको एक बड़ा आंदोलन बनाते हैं, तभी जाके हम जल्दी ये केमिकल्स को ख़त्म कर सकेंगे या कम कर सकेंगे, एंड सबको अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में कैसा खेती करना है, सबको कैसा मैक्सिमम क्रॉप आएगा, ये नॉलेज जो मुझे मेरे गुरु ने दिया है, मुझे वो सबको देना है. आई लिव इन प्रेजेंट मोमेंट में, मैं आज में जीती हूँ. आज बुलाया तो मैं आज आई. आई डोंट वांट टू डिले इट फॉर फर्दर. सो मेरे मेंटर का एक छोटा सा एक बता के मैं एंड करूँगी. वेंकटेश जी जो थे बहुत अच्छे थे. उनके साथ मैंने एक 2-3 साल भी काम नहीं किया, वो नहीं है रहे बाद में. वो बोलते थे वी कैन, पर्माकल्चर इज़ आवर फ्यूचर एंड आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन पर्माकल्चर. एंड उनका लास्ट ब्रेथ तक वो बोलते थे कि वी कैन ओनली इंस्पायर पीपल, वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी. एंड उनका एक कोट मुझे आज भी बहुत टचिंग लगता है कि जाने से पहले उन्होंने ये बात मुझसे कही थी कि इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड इफ़ यू आर नॉट इंस्पायर्ड देन यू आर एक्सपायर्ड. And even you are inspired and not inspiring others, you are expiring. And even if I inspire one person in my life, that one person will do rest of the world's job, and that one person is you बोल के मुझे दिखा के गए. And that's why I am very passionate and always ready to share this till I am here. Whatever knowledge, we have to share it. The way I received, the way I wanted to give. I don't want to dilute it. So thank you everybody for coming and listening to me. Thank you so much. I'll just take 30 seconds. I'm so sorry. I'll just take 30 seconds on the behalf of Project Adopt a Queen. I'd like to thank Unmesh sir and the AMA for giving us this platform. All our adopters who have come, our collaborators, our mentors, our well-wishers, thank you so much for coming. તમારા બધાના મોઢા જોઈને બહુ સારું લાગ્યું. And on the end, on Project Adopt a Queen's end, અમારી આખી ટીમ, મીત જોશી, કાર્તિક મોરે, હર્ષ વેદાની, નિકિતા, ધ્વની, અમે બધા લોકોએ બહુ જ મહેનત કરી છે મેમની વાતો તમારા લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ. એન્ડ તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર project.aq ને ફોલો કરી શકો છો. બટ યસ, થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ.